समझना, one is called objectivity and second called subjectivity. What is difference? We have two words ना, objectivity and what is that? क्या है? कुछ चीजों के अर्थ समझना जो बहुत इंपॉर्टेंट होता. We actually want thick discussion. We want thick discussion. What is objectivity? Actually refers to scientific approach. When we say that we want objectivity, it means we want something scientific. Scientific means based on facts, observation, interpretation and theory, right? And when we talk about subjectivity, it is means interpretation, not on facts, interpretation of a person. So subjectivity हमेशा interpretate करती है. It is philosophy. What is philosophy? Interpretation. विक्टर टर्नर क्या कर रहा था? इंटरप्रिटेशन. गीट्स क्या कर रहा था? इंटरप्रिटेशन. मेरी बात को ध्यान रखना. अब जब भी हम कहते हैं ना कि इन यूपीएससी एग्जामिनेशन वी वांट ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी बोथ, मींस वी वांट फैक्ट्स एज वेल एज, यस, ऑब्जेक्टिविटी मींस प्रॉपर साइंटिफिक वे. अच्छा, why I'm telling you all this thing? Because now we are entering a new approach which is called the postmodernism, right? Postmodernism was an approach which challenged the approach of modernity. Modernity which started from Renaissance, right? And to postmodernist that end to the industrial revolution, right? And after this revolution, a new thought started which is called as postmodernist approach. Now this modernism का बेस क्या था? What was the base of modernity? First base क्या था? Objective, scientific experiment, scientific truth, think based on facts, right? And to modernism, science is the way to search absolute truth, right? So science is the thing which brings us to the truth. Clear? So modernity का बेस क्या है? Science. पहला. Second, science is based on rationality, logic. What is rationalism? Based on logic. Rationalism is based on logic. Clear? Third, ये किस चीज की बात करता है? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. ये किस चीज पे टिका हुआ है? कैपिटलिज्म, राइट? ये किस चीज पे टिका हुआ है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ institutions, then scientific description, and this description can be ethnography. Ethnography is also a description. Science, truth, objectivity, rationalism, right? Ethnography, interpretation, scientific method, scientific technique, scientific tools, secularism, right? Individuality was a part of all this thing. Materialism, individuality, right? Modernity is totally based on modern values, those values which are based on objectivity, which are based on rationalism,
which are based on modern education system, which is quite secular in nature, which is based on globalization, universal truth, universalization of truth, absolute truth. Science as a tool to search absolute truth. Then industrial revolution, and that revolution brought up the communism, defined theory, right? They all are the part of modernity. Modern art, they all are abstract. Knowing the culture, interpretation of different culture, universalization, writing history in that way also. And all these were started from Western world. That started from Western world, and from Western world it spread over globe, and these people were there to spread it. And modernity also had an era of colonization, imperialism. That was era. Those people are the part of modernity. Kante or Bacon or all those were the part of this one. इस थ्योरी को लेके चले, मॉडर्निटी, मॉडर्न थॉट, मॉडर्न आइडियाज, मॉडर्न थिंग्स, इंडिपेंडेंसी, जिसको हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वी टॉक अबाउट फ्रीडम, लिबर्टी, एक्सप्रेशन, सेक्युलर, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, सोवरेनिटी, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ ये एक एरा. After that, a group of people which were philosophers, which were artists, then researchers, then sociologists and anthropologists. A new class arose which criticized the concept of modernity. Whether it is about Foucault, whether it is Boy, Neuheiser, right? These people completely criticize this modernity. And to them, the period of modernity is already over. And now we are living in the or it is called as the era of postmodernism, right? Postmodernism, and this actually criticizes the whole concept of modernity, which is based on yes, to them what is important? Yes, उन्होंने कहा साइंस कैन नॉट गिव यू ट्रूथ. Science is manipulated by human, and how a things which is created by human can go to the absolute truth. Science क्या है? प्रोग्राम है. You have experiment in your mind. You go to a field. What tools you have, on the basis of it, you try to search the truth, and whatever you get, you will say it's the truth. Clear? A basic difference between religion and science, what is that? देखो, साइंस में कभी भी कंक्लूजन फिक्स नहीं होता. कंक्लूजन ऑलवेज चेंज विद द चेंजिंग टेक्निक, चेंजिंग ऑब्जर्वेशन, चेंजिंग इंटरप्रिटेशन. पहले आपने कहा कि सबसे इंडिविजुअल पार्ट जो है वो है मॉलिक्यूल. उसके बाद आपने कहा एटम. उसके बाद एटम के भी टुकड़े हो गए. विद द कोर्स ऑफ टाइम साइंस हैज ऑलरेडी बीन चेंज. अब डाल्टन के एटॉमिक सिस्टम को कौन पढ़ता है? आज आप क्वार्क पार्टिकल्स की बात कर रहे हो. इवन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कैन बी डिसोसिएटेड इन क्वार्क पार्टिकल्स, एंटी क्वार्क पार्टिकल्स. सो थिंग्स हैव बीन चेंज्ड विद द प्रोग्रेस ऑफ साइंस. ट्रूथ इज चेंजिंग, राइट? सो साइंस का एंड कभी भी फिक्स नहीं है. रिलीजन में एंड फिक्स है. आप वहां तक पहुंचो या नहीं पहुंचो, गॉड है. गॉड इज ऑलवेज देयर, वेदर यू रीच अप टू दैट और नॉट.
क्लियर? सो वहां पे तुम्हारा एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन इज नॉट देयर टू अफेक्ट द एंड. सो इन द रिलीजियस थिंग एंड इज ऑलवेज फिक्स्ड, बट नॉट इन साइंस. राइट? विज्ञान एक विशिष्ट ज्ञान है, स्पेसिफिक नॉलेज है, बट एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है. वेयर रिलीजन इज एन एब्सोल्यूट, इट इज ऑल अबाउट एब्सोल्यूट नॉलेज. कि अंत क्या? एब्सोल्यूट का मतलब जहां पर आपको अंत पता होगा, इसके बाद कुछ नहीं है. इट टॉक्स अबाउट दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ कि एको ब्रह्म दूजो नास्ति. रिलीजन सेज, साइंस ने कभी कहा? साइंस ने गॉड है ही नहीं, उनको तो आदमी को पता है गॉड है या नहीं है. वो कहता है एको ब्रह्म दूजो नास्ति, सिर्फ ब्रह्म है, बाकी दुनिया है नहीं, माया है. राइट? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या. इट इज इक्वल्ड बाय रिलीजन, नॉट बाय साइंस. साइंस कह रहा पता नहीं, हम तो खोज कर रहे हैं. वी आर स्टिल इन एक्सपेरिमेंट. सो ये कहता है साइंस कैन नॉट बी अ थिंग टू सर्च द एब्सोल्यूट ट्रूथ. और यहां पे साइंस ये सब ट्रूथ बना रहा है. जो साइंस कह रहा है वो सच है. Like we want religion in scientific method also. We want objectivity of religion, not the subjectivity. If science says it is right, you say it is right. Science कहता है कि नहीं भगवान नहीं मिले, आप कहोगे नहीं मिले होंगे, बिकॉज वो साइंस में नहीं है, हिस्ट्री. नाउ ये बात ये कहती है कि पहली चीज ये जो नकारते हैं, जिसके लिए मना करते हैं, वो ये क्या कहते हैं? There is nothing like absolute truth in this world. Truth is contextual. Truth is contextual. And with the course of time gets changed. How you can say it is ultimate truth? Everything is changing. If you go to the course of history, क्या कोई चीज truth रहा है? With the course of time everything gets changed. And change is inevitable. It's permanent. All the things change is permanent. So in the changing world, how one thing can be absolute? आपने कहा जी ये सिंपलर पीपल है, ये सिविलाइज्ड है, ये सेवेजेज है, ये बारबेरियन. उसने कहा ये कैसे हो सकता है? आप कैसे ये बात कह सकते हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं? पहले तो साइंस ऐसी थी, आज ऐसी. नो द ट्रूथ. तुम अभी भी ट्रूथ नहीं जानते. सो पहले देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट ट्रूथ इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज इट्स ए कंटेक्चुअल. In your context, something is truth. In my context, something is truth. In a culture, something is truth. In other culture, it is not truth. Right? तुम आत्माएं मानते हो, दूसरा नहीं मानता. तुम स्पिरिट्स को देते हो, दूसरा पूजा नहीं करता. क्या कुछ एब्सोल्यूट ट्रूथ है? Atheist does not believe in God. You don't believe in atheist. Clear? So पहली बात को ये कहते हैं, आप ये एब्सोल्यूट ट्रूथ वाली बात खत्म करो. सेकंड, दूसरी बात, they always discard ethnography. How you can write about a culture? Because we are already biased. हमने पढ़ा था ना आइडियल कल्चर, और तीसरा क्या था? कल्चर कंस्ट्रक्ट. Culture construct. So your ethnography is culture construct, not the culture. So all the ethnography which are already written, they all are of no use. They are construct. They does not show the real culture picture. Because a person goes to a culture, it is already cultured by other culture. And a person which is already cultured by other culture, how it can write about a culture where it is not cultured? समझ में आया? मेरी अपनी कल्चर है जिसमें मैं पला बड़ा हूं, मैं किसी और कल्चर को पढ़ने जा रहा हूं, तो मेरी मेमोरी तो अपनी कल्चर की है. हमने एक पढ़ा था, जिसको तुमने देखा होगा, कि व्हाट इज मेमोरी फॉर द पर्सन इज ए कल्चर फॉर द सोसाइटी. पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा था ना. कहां पढ़ा? Personality and culture. Okay, what is memory for a person is the culture for the society. So your memory is your culture, right? Because if you are living in a society, you have a culture, and that culture is already here. So if you go to other culture, and if you observe them,
You will observe with your own culture. Right? Now a comparison will be there. Whatever you will write with that comparison, whatever you have in your mind. तुम फ्री नहीं हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है. अगर तुम कंप्यूटर को इंस्टॉल में कुछ करके उसके साथ कोई चीज करते हो तो वो पहले से चीजों को क्या करेगा जो उसके पास ऑलरेडी है. अब मैं तुमसे व्हाट इज ट्रूथ, तो भाई जिस चीज से तुम्हें प्रोग्राम किया गया तुम उसके हिसाब से तो ट्रूथ खोजोगे. क्या तुम्हारे पास नई चीज है? नहीं. आप कितनी भी एमए का प्रूफ ले लो, क्या आप अपने आप को भुला पाओगे? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या आप अपनी कल्चर को साइड में रख सकते हो? नहीं. आपने कहा कि मुझे नॉनवेज से प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे सामने ऊंट रखता हूं, उसको धीरे धीरे काटता हूं, उसको पूरा पकाता हूं तुम्हारे साथ हड्डी मुंह के साथ में, कहूंगा लो खा लो, जरा खा के बताओ. मे बी यू आर ए नॉनवेज, मे बी आप खाते हो, पर मैं तुम्हारे सामने इस तरह से लेकर आऊं कि तुम्हारे सामने उसको मैंने पूरा रखा, मुंह समेत उसको बांध के पका रहा हूं और तुम्हारे पूरी थाली में लगे पूरा लो सा. वुड यू लाइक टू ईट? तुमने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं खाता हूं, मैं तो टुकड़े करके जो मुझे फ्राई करके देते मैं खा लेता हूं. राइट? बिकॉज यू हैव ए मेमोरी अबाउट दैट ईटिंग हैबिट. राइट? एक ईटिंग हैबिट. अब वेस्टर्न में इंडिया के लोग तो हाथ से खाते हैं, गंदे खत्म स्पून से खाते हैं. वी आर गुड वन. राइट? अब कोई आदमी जो चम्मच वाला है अगर वो किसी और में जाता है जहां पर लोग हाथों से सबोड़ के खा रहे हैं, टूट टूट के खा रहे हैं, जमीन को साफ करके खा रहे हैं, क्या लिखेगा कल्चर के बारे में? गुड और बैड? एटीट्यूड आर नॉट गुड. वो ये नहीं कहेगा गुड एटीट्यूड, क्या कहेगा? एटीट्यूड आर नॉट. सिंपल एटीट्यूड. क्या वर्ड लाएगा? सिंपल. अपनी चीज को छुपाने के लिए वर्ड क्या यूज करेगा? सिंपल स्टाइल. जनरल थिंग, वेरी बेसिक एटिकेट्स. बट उसके मन में कहीं ना कहीं, जैसे जस्टिन लिखता है मॉरियंस के बारे में, हम्बल ओरिजिन. क्या वर्ड यूज करता है? क्यों? हाँ, हम्बल मतलब वो ये नहीं लिख सकता नीच. क्या लिख रहा है? हम्बल. पर मन में भावना तो यस. मॉरियंस, मॉरियन का जो ओरिजिन हुआ, क्या मॉरियन कहां से पैदा हुए थे? तो उसने कहा मॉरियन जो है वो क्षत्रिय नहीं थे. कौन थे? कुल. वर्ड क्या यूज करे? तो उसने लिख दिया हम्बल ओरिजिन. हम्बल बड़ा अच्छा वर्ड नहीं है? और हम कहते हैं यू नीड टू बी हम्बल. हम्बल इज नॉट काइंडनेस प्लीज. हम्बल का अर्थ जो है वो बहुत अलग होता है. हम्बल का मतलब जो तुम किसी कुल से नहीं हो. आप अच्छा एक बात बताइए, मॉरियन हम्बल ओरिजिन कैसे हो गए? उसने हम्बल वर्ड किस रेस्पेरेंस में यूज किया, जरा सोच के देखो. वैसे हम्बल कहते हैं कर्टियस, विनम्र. तो क्या वो विनम्र उत्पत्ति थी? हम्बल ओरिजिन का मतलब ये हो गया कि दे आर नॉट फ्रॉम एन एरिस्टोक्रेट फैमिली, दे आर नॉट फ्रॉम अ फैमिली विच इज क्वाइट रेपुटेड. उसके लिए हम्बल वर्ड यूज किया गया ना, तो हम्बल वर्ड का ओरिजिन वहीं से हुआ है. क्लियर बात में? हम्बल का मतलब हो गया वो लोग जो बड़ा आदर भाव से आपको मान रहे हैं, जिनकी गर्दन यस थिंग्स हैव बीन चेंज्ड. सो मैं आपको ये कह रहा हूं, पोस्ट मॉडर्निटी को समझो. These people discard all type of assumptions which were made by modernists in terms of objectivity, in terms of scientific study, in terms of experiments, in terms of expeditions, in terms of documentary, in terms of writing, in terms of artists. All these things which were made on objectivity, वो सबको डिस्कार्ड करता है. How you can make scientific study on a culture? And they are extreme relativists. Extreme relativists. Culture is quite unique in its nature. Quite unique. How you can write an ethnography with culture if you don't belong to that culture? तुम्हारा तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, या तो कल्चर में से होके लिखो. सो वो सारी एथनोग्राफी जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने लिखी है वो सबके खिलाफ है. Because to them, those areas were the earliest part of colonies. और वो वहां पर वेस्टर्न थॉट को के हिसाब से उन लोगों को देख रहे थे. उनकी जितने, अब जैसे मान लो मैं बात करता हूं मार्गरेट मीड की. मार्गरेट मीड समोन्स को किसका कंपेयर किया? क्यों? चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, बट इससे कंपैरिजन कैसे चल रहा है?
हो ही नहीं सकता ना। एग्रीकल्चर, तो ये लोग एक्सट्रीम रिलीजियस, दीज पीपल आर एक्सट्रीम रिलीजियस। पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है, मतलब कि ये कहते हैं कल्चर को उसी के कंटेक्स्ट में पढ़ा जाए, बाहर तो पढ़ ही नहीं सकता। हाउ यू कैन कंपेयर टू कल्चर्स, इट्स नॉट पॉसिबल ना। जैसे हमने देखा मडॉक ने 250 सोसाइटी का अध्ययन किया और एक जनरलाइजेशन सिस्टम निकाल दिया। मॉर्गन ने अध्ययन किया, हाउ इट कैन बी जनरलाइज्ड। जनरलाइज मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ। उसने कहा कैसे हो सकता है, कल्चर का तो कंपैरिजन ही नहीं है। इफ नॉट कंपैरिजन इट कैन नॉट बी ट्रुथ। हर कल्चर का अपना ट्रुथ है, अपनी यूनिकनेस है। तो देयर एक्सट्रीम दे आर extreme relativism. They discarded scientific experiments, scientific theories, objectivity, expeditions. Okay, कोई काम के नहीं है तुम्हारे। इनको बोलते हैं सेप्टिस्ट। क्या बोलते हैं इनको, क्या इनके लिए क्या बोल लिया हमने, सेप्टिमिस्ट। ये जो लोग हैं वो पोस्ट मॉडर्निस्ट, सब डिस्कार्ड करते हैं, सब डिस्कार्डेड एवरीथिंग। Everything is irrational. Nothing is like rational. देख के everything is and irrational is truth. Irrationality is truth. Why logic? Because logic is the origin of your mind, and mind is determined by the culture. Culture is your memory. So what you say rational, that is not rational. That is logic made by you to prove your thing for others. मैं वही तर्क दूंगा ना जो मैं हूं, राइट? मैं वही लॉजिक दूंगा जो मैं हूं। मैं वो कैसे दे सकता हूं जो मैं नहीं हूं? तो तुम्हारी रैशनलिटी तुम्हारी है, सामने वाले को रैशनल के हिसाब से क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें इनकी बात ठीक लगती है? आई एम आस्किंग, क्या इनका थॉट तुम्हारी समझ में आता है? देखो सब चीजें गलत नहीं है। इन्होंने एक ही बात कही थी कि ये सब कुछ लोगों का, वेस्टर्न वर्ल्ड का, अदर लोग के बात पे अपनी चीज को थोपने का तरीका था। चाहे वो अपने इंस्टीट्यूशन थे, चाहे अपनी आइडियोलॉजी थी, चाहे अपनी कल्चर थी, उन्होंने उसको माइंड में रखकर, परस्पेक्ट रखकर बाकी कल्चर को पढ़ा। तो क्या ये सही है? ये बात इन्होंने कही। पोस्ट मॉडर्निस्ट वो लोग हैं जो इस कंसेप्ट के खिलाफ है। ये कहते हैं मिडिवल को आप कहते हो, और क्यों? क्योंकि वो कहते हैं तुम्हारे पीछे एक थॉट काम कर रही है। वो थॉट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो थॉट है कैपिटलिज्म, वो थॉट है कम्युनिज्म। तुम्हारा अपना एक माइंड पहले से सेट है, उस माइंड से तुम अलग अलग सोसाइटीज को देख रहे हो और उसके हिसाब से उनको क्लासिफाई कर रहे हो। ये सिफिलिस है, ये असिफिलिस है, ये बैंड है, ये ट्राइब है, ये सोसाइटी है, इसमें ये पावर है, ये कंट्रोल है, अथॉरिटी। में तुम कैसे कह सकते हो व्हाट इज अथॉरिटी एंड कंट्रोल? क्या वो तुम्हारी डेफिनेशन में आते हैं अथॉरिटी की? यू डिफाइन ना ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, एक्सपेरिमेंट। तुम्हारी साइंस ही ठीक नहीं है। ये पोस्ट मॉडर्निस्ट है, सेप्टिस्ट सिस्टम। उनके दिमाग में ना अथॉरिटी, वो कहते तुम्हारी अथॉरिटी है, अथॉरिटी एक जो जरूरी थोड़ी है। जिसको तुम अथॉरिटी कहते हो वो क्या सिंपल सोसाइटी में होगी? नहीं, क्योंकि तुमने कॉम्प्लेक्स सोसाइटी पढ़ी है, तो तुम उस अथॉरिटी को हल्का करके, डाइल्यूट करके इनके लिए यूज कर रहे हो। तुमने कंसंट्रेटेड पढ़ा है, यहां पर वो सिस्टम ही नहीं है, फिर भी तुम डाइल्यूट करके इस सिस्टम को उसमें घुसाने की कोशिश कर रहे हो। अब मैरिज की यूनिवर्सल डेफिनेशन के पीछे प्रॉब्लम क्या है? मॉडर्निस्ट आइडिया। फैमिली डेफिनेशन के पीछे प्रॉब्लम क्या है? यू ऑलरेडी हैड अ डेफिनेशन एंड यू वांट टू मेक देम फिट। कि मैरिज है तो सोसाइटी है, फैमिली सोसाइटी को जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारी सोसाइटी डेफिनेशन दूसरी सोसाइटी में भी इंप्लाई हो। ये कैसे है? देन उसके बाद में दे डिस्कार्टेड ये उस आइडियोलॉजी को डिस्कार्ड करें जो लोग लेके हिस्ट्री लिख रहे हैं। लाइक इन इंडियन हिस्ट्री वी से, व्हाट वी से इन इंडियन हिस्ट्री, वी हैव एंशिएंट, वी हैव मिडिवल, वी हैव मॉडर्न, राइट? तीन सिस्टम है ना। एंशिएंट क्या है? अ टोटल काओस, जिसमें कोई सिस्टम ही नहीं है, राइट? मिडिवल क्या है? इन्वेडर्स हिस्ट्री, विच इज द हिस्ट्री ऑफ फ्यूडलिज्म, राइट? जिसको आप डार्क एज कहते हो।
ये कोई एज नहीं है, ये डार्क एज है। तो इनलाइटन कौन सी एज है और मॉडर्न एज किन की है? नहीं, ये एक ग्रुप है लोगों का, जो अमेरिकन भी है, जो फ्रेंच भी है, जो ब्रिटिश, मतलब वो लोग जो इस मॉडर्न के खिलाफ है, वो इस आइडियोलॉजी के खिलाफ है कि चीजें ऐसे बनी है। ये कहते हैं चीजों के कंटेक्स्ट में देखो, कल्चर को कल्चर के कंटेक्स्ट में देखो, लॉजिक छोड़ो, तुम्हारा साइंस छोड़ो। ये कह रहे आपने जो हिस्ट्री लिखी है ना, उस हिस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है? वो सारी हिस्ट्री जो है वो आपने बनाई है। यू कंस्ट्रक्टेड हिस्ट्री, इट वाज नॉट हिस्ट्री। तुम्हारी हिस्ट्री में कहीं भी मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी का कोई जिक्र है क्या? अनप्रिविलेज का कोई जिक्र है क्या? तुम्हारा तो राजा ही राजा है, तुम्हारी हिस्ट्री राजाओं के युद्ध है, राजाओं की जीत और हार है ना? वो कह रहे आपने ढूंढा ही वही है ना सब में। हिस्ट्री का मतलब खाली पॉलिटी तो नहीं है ना, खाली इकोनॉमी तो नहीं है ना। कल्चर कहां है तुम्हारी? कल्चर के नाम पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो खड़े उनको देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इन पे ध्यान देना है, जिनको हिस्ट्री ने दरकिनार कर दिया। क्या तुम्हारी हिस्ट्री में ट्राइबल हिस्ट्री है? मैं तुमसे पूछता हूं, मैं सिंपली आपसे पूछता हूं, क्या तुम्हारी हिस्ट्री में ट्राइबल हिस्ट्री है? हम जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं? हमने थर्ड एडी में पढ़ा कि मौर्यंस में एक जगह लिखा आता है जहां पर अशोक ने अपने एडिक्ट में अपने पास के ट्राइबल्स का जिक्र किया है। सही बात है ना? एक एडिक्ट में हमारा उतना ही ट्राइबल खत्म हो जाता है। क्लियर बात है? उसके बाद जब हम गुप्ताज के टाइम में आते हैं तो गुप्ता के टाइम में हम बात करते हैं मालव, अर्जुनन, युद्धेक, हरपड़न। क्या इनकी हिस्ट्री हमने पढ़ी? हम आगे निकल गए, इनको हिस्ट्री में हमने डिसअपेयर कर दिया, विलीन कर दिया। हम पढ़ना शुरू करके राजपूत एज पढ़ रहे हैं। उसके बाद किनको पढ़ रहे हैं? तर्किस के बाद कौन? सल्तनत और राजपूत। उसके बाद मुगल्स, राजपूत। देखो, मुगल्स एंड राजपूत। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्रिटिशर्स एंड रूलर्स, इंडियन रूलर्स। उसके बाद में ब्रिटिशर्स सुप्रीमेसी। उसके बाद में स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, और खत्म। अब मुझे बताइए इसमें इनकी हिस्ट्री कहां है? आपकी हिस्ट्री कंस्ट्रक्टेड है और उसको कंस्ट्रक्ट ऐसे किया गया है कि द एंड ऑफ हिस्ट्री विल बी द एपेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्लोबलाइजेशन, यूनिवर्सल अप्रोच, ग्लोबलाइजेशन। ये तुम्हारी हिस्ट्री का एपेक्स है। तुम्हारी हिस्ट्री को यहां पहुंचाना है ताकि लोग इसको एक्सेप्ट करें एज अ मॉडर्निटी, एज एन आइडियल वे ऑफ लाइफ। बाकी सबको वो कैपिटलिज्म था, अंधकार था, कायोस था, असली चीज। और हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट द वे फॉर वेस्टर्न वर्ल्ड मेंटालिटी एंड थॉट, जहां पर उनके इंस्टीट्यूशन और आइडियोलॉजी को टॉप पे रखा गया है। हाँ, वो कहते हैं यही तो चाहते हैं। अब तुम्हारी हिस्ट्री उठा के देख ले। हमारी हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री उल्टा क्यों कर रहे हो? खाली टाइम के हिसाब से थोड़ी देख रहे हो तुम। वो कह रहे इन्होंने टाइमलाइन बनाई कैसे? और करके यूरोपियन हिस्ट्री वैसे ही 15 एडी से पहले तो स्टार्ट नहीं होती है। वहां तो वॉर ही वॉर। वो रेनेसां के बाद अपने आप को मॉडर्न कहते हैं और उस हिसाब से पूरी हिस्ट्री को डिजाइन करते हैं कि हम मॉडर्न है। तो जहां भी मॉडर्न नाम आएगा वहां पर हिस्ट्री को इस रूप में लेकर आ गए कि वेयर वेस्टर्न वर्ल्ड डोमिनेटेड द होल वर्ल्ड। अब उसमें कॉलोनिज्म है, इंपीरियलिज्म है, डेमोक्रेसी है, राइट? डेमोक्रेसी है, उनके थॉट्स है, वो और सब चीजें किधर ले जा रही है? टेक्नोलॉजी, कैपिटलिज्म, वेस्टर्न थॉट्स, वेस्टर्न फिलोसॉफी, उसको सब पे थोपा जा रहा है। क्लियर? इंपीरियलिज्म, रैशनलिज्म। एक बंदा आता है, इसका नाम होता है नीत्शे। क्या नाम होता है? इस पोस्ट मॉडर्निज्म की उसने ट्रुथ, नॉलेज दोनों की कॉलर पकड़ी। उसने कहा व्हाट इज ट्रुथ? नथिंग इज ट्रुथ।
There is no absolute truth in this world. Everything is in suspect. There is no knowledge which is absolute. Knowledge, what you have, it's your culture, not the knowledge. What memory on your mind, that is your knowledge. It's not your knowledge. Knowledge is subjective. Knowledge is not objective. You have already determined the way, methods and tools and techniques, and that you say objectivity, scientific. So that is already determined. How it can be knowledge? It's just information and processing only, but not the knowledge. Knowledge is all about the subjectivity. यहाँ से लोग उठे और नीचे के थॉट को लिया, जो उसने क्रिटिसाइज किया था कि जिसको ट्रुथ कह रहे हैं लोग, जिसको नॉलेज कह रहे हैं, रोज जिसको फाइनल डिटर्मिनेशन कहते हैं, वो सब गलत है. सब कुछ संशय है. निहिलिज्म स्टार्ट होता है. निहिलिस्ट, संशयवादी. निहिलिस्ट का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं. वो कहते हैं जो तुम सोचते हो वो नहीं है, क्योंकि तुमको जो समझाया गया है, सिखाया गया है नॉलेज के नाम पर, दैट इज नॉट नॉलेज. तुम्हें एक सिस्टम बना दिया गया, तुम उस पर चलते हो, वही चीज प्राप्त करते हो. तुम कहते हो हाँ मैं पढ़ लिया. क्लियर? नॉलेज इंटरप्रिटेशन है. नॉलेज आपकी अपनी खोज है, जिसमें आपके यहां पर कोई बायसनेस नहीं है. आप चीजों को वैसे देखते हो जैसी वो है, ना कि वैसे बनाने की कोशिश करते हो जैसे आप चाहते हैं. You want to modify everything, even God also. If God is not scientifically proved, God is not God. That's your thing. Right? You say it is myth, it is mythology, it is history, it is science. Right? You say historical events are the events, otherwise there is no event. Right? You say this is history, this is the literature, and that are the folklores, that are the folk tales. उनका कोई स्थान, ओरल हिस्ट्री का कोई स्थान नहीं है. क्यों नहीं है? Because you do not think about that. ये तो लोक कथा है. बात समझ रहे? अगर हम कहते हैं रामदेव जी विष्णु का अवतार है हमारे, तो इस बात को साइंटिफिक कहेंगे कैसे हो सकता है? साइंस तो कहता कैसे होंगे, बट हम जानते होंगे. आप किसको ट्रुथ रखोगे? साइंस क्या है? सत्य की खोजी तो है. साइंस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड फैक्ट यू फाइंड आउट द ट्रुथ. कि व्हाट इज अल्टीमेट ट्रुथ. तुमने कहा हम किससे बने हुए हैं? कि हमें भगवान ने बनाया. नहीं, भगवान ने नहीं बनाया तुमको. तुम इवोल्यूशन हो. तुम्हारा इवोल्यूशन हुआ है. तुम गॉड के बेटे नहीं हो. इवोल्यूशन से पहले लोग क्या कहते थे? आदम और ईव किसकी संतान है? कहां से आए हैं? हेवन. हेवन से एडम ने एप्पल खा लिया था, नीचे गिर गए, उससे हम पैदा हो. हमारा शास्त्र कहता कि हम सब किसकी संतान है? कि विष्णु प्रलय के बाद में उनसे ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा से पुत्र होते हैं मनुष्य, मनुष्य हम पैदा हुए. तो before this scientific era, before this modernity, before this objectivity thought, we all were the God side. The origin of human was divine. इन्होंने क्या कहा? Not, it's not divine. It is not divine. It's just evolution. We started from simple organism to complex organism. So there is no God. Evolution happens on this earth only, and this is due to the natural selection, nature. Right? तो कुछ भी गॉडली नहीं है. उसके बाद हम गॉड के बेटे नहीं रहे. हम किसी सिंपल ऑर्गेनिज्म के बेटे हो गए. मैं ये तो साइंटिफिक लॉजिकलिज्म बनाए किसने हैं? वो लोग जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उनका भी तो कोई थॉट रहा होगा. राइट? वो कह रहे हैं आपका गॉड का, ये देखो इवोल्यूशन ने हमने स्वीप कर दिया. हाँ, तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के टूल्स, टेक्निक, मेथोडोलॉजी किस तरह? ह्यूमन कौन था? वेस्टर्न, ईस्टर्न, प्रिमिटिव सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी, न्यू सोसाइटी. हमारे हिसाब से जो साइंटिफिक लोग हैं वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, और जो नॉन साइंटिफिक है वो, यही बात है. Knowledge is contextual. Your knowledge is different, my knowledge is different, because my experience different and your. Yes. वही वाली बात जो हम कहते हैं. मैं बार बार एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि गांव के अंदर टेलीफोन की लाइन डल रही थी, ऑप्टिकल फाइबर डल रहे थे, तो बड़ा उबड़ खाबड़
भाई टीम लेके, अब वो गांव में यूं चले, कभी यूं कभी, अब ऑप्टिकल फाइबर आगे जा ही ना, हर बार फंस जाए। एक तरह का साहब रोज बाद खेत के बाद बैठ जाता, देखता है साहब क्या कर रहे हैं। एक दिन छुट्टी होती, बड़े डरते डरते जाते, कहता है साहब मैं करूं, करते यहाँ 20 इंजीनियर की टीम वो नहीं कर पाई, तुम क्या करो, आधा घंटा मैं करके दिखा दूंगा। तो पास वाला कहता है दे दे, रोज आके बैठ जाता है, जान खाएगा। तो वो कहता है 2 मिनट है, जाता है खेत में, जाते एक घूस पकड़ के लाता है, ठीक है, उस घूस मोटे वाला चूहा उसकी पूंछ में फाइबर बांधता है और उसको उस पाइप में छोड़ देता है, वो यूं यूं करता दूसरी साइड से निकल जाता है। वो कहता है ये लो, नाउ व्हाट इज नॉलेज। ये मैं यही आपको कहता हूं, नॉलेज इज कॉन्टेक्सचुअल, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं। ये पोस्ट मॉडर्निज्म यही कहता है, नॉलेज इज कॉन्टेक्सचुअल। एब्सोल्यूट वर्ड को हटाओ, ट्रूथ एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकता, क्योंकि विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट ट्रूथ कुछ भी नहीं हो सकता। मॉरलिटी सही नहीं है, ये मॉरलिटी के खिलाफ है कि कोई यूनिवर्सल एथिकल नहीं है, कोई यूनिवर्सल एथिक्स नहीं है, कोई यूनिवर्सल मॉरलिटी नहीं है। एक टाइम में वॉर तुम्हारा मॉरल हो जाता है, एक टाइम में वॉर तुम्हारा मॉरल नहीं रहता है। धर्म के नाम से लड़ो, वॉर मॉरल है, न लड़ो तो इमोरल है। तो ये क्या है, एक जगह मरना एथिकल, एक जगह मरना अनएथिकल है। तो तुम्हारा ये कौन सा सिस्टम है भाई? एवरीथिंग इज कंटेक्चुअल, क्लियर? नहीं भाई, यही आपको कह रहा हूं, ये कह रहा है कि आप इन संशयों को छोड़ दो। जैन धर्म के तस्ती नस्ती हम बात कर रहे थे ना, एब्सोल्यूट ट्रूथ कहां है? कहीं भी नहीं है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, हम कहते हैं रिलीजन एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसका फाइनल गॉड है, ये लोग मानते हैं। बट ये जो मॉडर्निटी की बात कर रही है, ऑब्जेक्टिविटी है, इंटरप्रिटेशन नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी है। अब जैसे हम कहते हैं जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट, दोज हु गो डीप द अंडरस्टैंडिंग विल गेट द थिंग्स। इसमें उन पे कोई वो नहीं है, वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, नॉलेज मिलेगा। वो का इंटरप्रिटेशन अपनी अलग अलग होता है, इसलिए एक्सट्रीम रिलेटिविज्म है कि हर कल्चर का अपना कंटेक्स्ट है, अपना एक इंटरप्रिटेशन है, आप उसको मानो। और हिस्ट्री में आपको इस टाइम में किस पे ध्यान देना है, क्योंकि पूरी साइंस में, पूरे मॉडर्निटी में इन लोगों को किनारे पे कर दिया गया है। कौन कहां है ट्रूथ? एक भी ट्रूथ एब्सोल्यूट नहीं है के हिसाब से। ये कहते साइंस कहता ना कि यार ये एब्सोल्यूट ट्रूथ। आज जितनी भी तरक्की हो रही है साइंस की वजह से तो हो रही है कि उन्होंने एटम खोज दिया, इलेक्ट्रॉन खोज दिए, प्रोटॉन खोज दिए। हम कहते हैं उसी में ट्रूथ बताया कि वास्तव में लोग किससे बने होते हैं। वो कहते आप कुछ भी नहीं, सिर्फ एटम से बने हुए हो। राइट? आत्मा को मानता है क्या? नहीं मानता। को साइंस मानता है क्या? रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं लोग, ये कहते हैं कल्चर की। एंथ्रोपोलॉजी किसकी बात करेगा? I am going with socio-cultural context. In that way, first of all, ये बात क्या कर रहे हैं? Ethnography, which is written with the Western mind, discarded. Second, making ideas about other society, discarded. Third, extreme cultural relativist. Fourth, against the modern institutional style. Fifth, because modern institutions are the manifestations of the Western world, we should take care of the indigenous people, their institution, their thing, with their context. Means we should take care of marginalized people section in society. Right? देखो मॉडर्निटी हर एरिया में आया, हिस्ट्री में, फिलोसॉफी में, आर्ट में। हम बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजिकल कंसेप्ट। मैंने तुम्हें एक ब्रॉड आइडिया दिया। Second, they believe in subjectivity approach, not the. So everything should be interpreted. Whatever already written, it should be interpreted subjectively. एक तो होता है सब्जेक्टिज्म, जो कहता है सब नष्ट कर दो। दूसरे को क्या बोलते हैं? दूसरा वर्ड आता है, दैट इज कॉल्ड एज एफर्मेटिव्स। उनका रिकंस्ट्रक्ट, उन्होंने क्या वर्ड दिया? दोबारा करो इंटरप्रेट। जो लोगों ने लिखा है विद देयर माइंड, उसको दोबारा रिपीट करो। सो होल एथनोग्राफी शुड बी रिकंस्ट्रक्ट, रीइंटरप्रेटेड। हाँ, हम सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। सो एथनोग्राफी शुड बी रिकंस्ट्रक्टेड। दो लोग, एक कहता है सेप्टिज्म, वो कहता है सब खत्म कर दो, जो पे लिखा गया वो सब
whether it is history, whether it is ethnography, whether it is description, सब बेकार है। दूसरे कौन है, कहता नहीं, जो लिखा गया ना उसको री इंटरप्रेट करके रिकंस्ट्रक्ट करना है। So two branches are there, substantive and affirmative. पोस्ट, मैंने मॉडर्निस्ट का तो बताया कि पोस्ट मॉडर्निटी उभरा कैसे, राइट? अब इस रूप में उभरा के ये चाहते हैं कि सोसाइटी में अगर आपकी हिस्ट्री है तो उसमें सब सेक्शन को स्थान मिलना चाहिए। तो सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट किनको आपने नेगलेक्ट किया है? सोसाइटी सेक्शंस व्हिच आर नॉट द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, तो पहले उनको तवज्जो दो, क्योंकि एक्चुअली वो लोग हैं जो कंटेक्चुअल। दूसरा, एक्सट्रीम रिलेटिविस्ट है। You cannot return ethnography with your own mind. Culture should be studied in their own cultural way. Extreme culturalist, इसमें बुआसियन के थोड़े पास में है, right? So बुआसियन सपोर्ट है। बुआस was the first person who started cultural relativism. So ये बुआसियन के एक्सट्रीम के सपोर्टर है कि should be the extreme way. इसको हमने वर्ड दिया थिक डिस्क्रिप्शन, राइट? बहुत थिक डिस्क्रिप्शन। कल्चर इन्वॉल्वमेंट इतना हो कि आप अपनी कल्चर को भूल जाए। तो ये दो ही चीज होते हैं, थिक डिस्क्रिप्शन एंड एक्सट्रीम रिलेटिविज्म। गिड्स, थिक डिस्क्रिप्शन बोला था ना वर्ड, ये भी आपको थिक डिस्क्रिप्शन। देखो थिक डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है कि यू इन्वॉल्व इन कल्चर, इतना कि आप उस कल्चर को समझ पाए। ये बात गिड्स कहता था, गिड्स भी नहीं का पार्ट है। गिड्स वाज आल्सो पोस्टमॉडर्निस्ट, क्लिफोर्ड गिड्स। जब उसने थिक डिस्क्रिप्शन की बात की थी उसने यही कहा था, थिक डिस्क्रिप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ पोस्ट मॉडर्न अप्रोच। हाँ, तो वो ये तो कहता था थिक डिस्क्रिप्शन क्या है? You need to involve in culture in such a way that you could assume yourself the part of the culture. Then you need to write. तो ये तो एक्सट्रीम रिलेटिविस्ट हुआ। क्लिफोर्ड गिड्स, तो you can write the name of Clifford Geertz. You can write name of Foucault. इनको लिखो, क्लिफोर्ड गिड्स है, Foucault है। गिड्स एक पोस्ट मॉडर्निस्ट है, पोस्ट मॉडर्निस्ट है क्लिफोर्ड गिड्स। ये तो सिंबॉलिक जिसको तुम बोलते हो ना, Foucault, F-O-C-A-U-L-T, Foucault। कुछ पोस्ट मॉडर्निस्ट दे रहा हूं तुमको, इन दोनों का नाम जरूर लिखना, क्लिफोर्ड गिड्स और इनको तुम अच्छे से जानते हो। डिस्क्रिप्शन तुम आराम से डिस्क्राइब कर सकते हो कि टू हिम व्हाट इज थिक डिस्क्रिप्शन, किस हद तक जाना चाहिए। इसको इसने न्यू एथनोग्राफी नाम दिया था। क्या नाम दिया था? न्यू एथनोग्राफी। जो इसने थिक डिस्कशन को बोला है। 70 के बाद के सारे लोग जो आ रहे हैं वो सब फिर कन्वर्ट हो रहे हैं, वो सब पोस्ट मॉडर्निस्ट की तरफ जा रहे थे। पोस्ट मॉडर्न एक दिन में थोड़ी पैदा हुआ है, एक दिन में इंडस्ट्रियल कब हुआ है? 1920s में, 2030s की बात कर रहे हैं ना। उसके बाद एक पूरा सेक्शन है जो बात कर रहा है लेवी स्ट्रॉस, कल्चर पर्सनैलिटी, जो साइकोलॉजिकल बात कर रहे हैं कि कल्चर इज मेंटल स्ट्रक्चर। So according to people, we have different culture, with different culture, different mentality, different psychology, right? ये भी तो बहुत बड़ी बात है। आप इसको सोच के देखो एक बार कि जो बात हमने लेवी स्ट्रॉस की कही है। लेवी स्ट्रॉस क्या कहता था? होल कल्चर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट माइंड। How you can prove, how you can write an ethnography of people who have different mind if you don't know their mental structure? इसलिए बाइनरी अपोजिशन की बात करता है। वो पिछली थ्योरी को डिस्कार्ड कर रहा है, डिसेंट थ्योरी को डिस्कार्ड कर रहा है ना, डिस्कार्ड को स्टार्ट कर रहा है। वो तुम्हारे टोटेमिज्म को डिस्कार्ड कर रहा है, नॉट थिंक गुड टू ईट, इट इज गुड टू। तो उसके पीछे एक साइकोलॉजी की नई दुनिया चलती है, नया मेंटालिटी आता है। इसमें तुमको इतना नहीं मिलेगा। मैं एक आइडिया तुमको दे रहा हूं, जब भी कुछ समझ में ना आए ना, कुछ सुना व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निटी, तुम मॉडर्निज्म को क्रिटिसाइजिंग मॉडर्निटी इज पोस्ट मॉडर्निटी, क्रिटिसाइजिंग मॉडर्निटी, मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, मॉडर्न एलिमेंट, ऑब्जेक्टिविटी इज कॉल्ड पोस्ट मॉडर्निटी। अब वो हर क्षेत्र में होगा। लिटरेचर, तो लिटरेचर में इन्होंने एक वर्ड यूज किया था, आपको वर्ड याद रखना, हो सकता है ज्यादा इसको बोलते हैं, ये फोकाल्ट ने यूज किया था, मेटा नैरेटिव। वन मोमेंट है, हेलो, हाँ जी,
इसलिए बता, मेटानेरेटिव का मतलब ये होता है कि विच वॉज रिटन इन द टाइम ऑफ मॉडर्निटी। तो जो उन्होंने नेरेटिव किया था ना, जो उन्होंने लिखा है, जो वो सब उनके अपने थॉट माइंड का था, वो प्रोग्राम था। जैसे मेटा है, मेटा क्या है? एक प्रोग्रामिंग है, एक प्रोग्रामिंग है। तो इन्होंने कहा ये प्रोग्रामिंग थी, दिस वॉज नॉट नरेशन, इट वॉज एक्चुअली प्रोग्रामिंग। तो ये इसके खिलाफ थे। प्रभु जी इतना पर्पल नहीं, ये इसके खिलाफ थे कि मेटानेरेटिव नहीं। सो ये इसको खिलाफ कर रहा है फोकाल्ट। कैसे? दोनों चेंज कर दिए, दोनों चेंज कर दिए। हाँ वो बस एक ही है, चेंज कर दिया। सो मेटा नरेशन, ऑब्जेक्टिविटी, कंटेक्चुअल, राइटिंग, डिस्क्रिप्शन, सोसाइटल थॉट, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ, एथनोग्राफी, हिस्ट्री, सबके खिलाफ। ये क्या चाहते हैं? सब्जेक्टिविटी। क्या चाहते हैं? सब्जेक्टिविटी। तो इनका जो मेन, जो हमने पढ़ा, पहली चीज क्या पढ़ी हमने? दूसरी एक्सट्रीम, राइट? हाँ, तीसरा क्या बात कर रहा है? एवरीथिंग इज, हर चीज एक कंटेक्चुअल होती है, किसी भी चीज का अपना कंटेक्स्ट होता है, एक संदर्भ में होती है, रेफरेंस में होती है। चौथी बात ये लोग क्या कर रहे हैं? चौथी बात ये क्या कर रहे हैं? हाँ, किसको ध्यान रखना है? मार्जिनलाइज सोसाइटीज को, राइट? ये बिल्कुल बात कर रहे हैं। एंड एवरीथिंग शुड बी डिकंस्ट्रक्ट। अभी बात करेंगे ना आगे, एक एक करके कर रहे हैं ना, कि भाई जब हम इनके पॉइंट में लिखना है तो पॉइंट क्या क्या लिखेंगे। ये चीजें करें कि सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, रिलेटिविटी होना चाहिए, कंटेक्चुअल होना चाहिए, मार्जिनलाइजेशन ध्यान, डिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए, राइट? होना चाहिए। ये सारी बातें कर रहे हैं। सब चीजों को विभाजित करो, काम की नहीं है तुम्हारे, जो कंस्ट्रक्टेड डिकंस्ट्रक्ट करो, राइट? यही अब बात करेंगे ना। रैशनलिटी। अब इसमें क्या है? अब इसमें क्या है? पहले तुम लिख ले कि इनके थॉट क्या है। अब क्रिटिसाइज किस चीज को कर रहे हैं? किसको कर रहे हैं? पूरे सिस्टम को, जिसको हमने क्या नाम वर्ड दिया? यस। इसमें मॉडर्निटी क्या आता है? बिलीफ। जो इनके थॉट और बिलीफ है, इनका उसके बाद कहता है इनका कंटेक्स्ट, इनकी ऑब्जेक्टिविटी, इनके आइडियाज, इनके इंस्टीट्यूशंस, सबको डिस्कार्ड कर रहा है। इन सबको ये डिस्कार्ड कर रहा है। इनकी एथनोग्राफी, इनके नैरेटिव्स, इनकी हिस्ट्री, इनकी फिलोसफी, सबको डिस्कार्ड कर रहा है, राइट? और डिस्कार्ड करने के तरीके क्या है? दो ग्रुप हमारे सामने आए हैं। पहला ग्रुप कौन सा है? दैट इज अफर्मेटिव्स। डिकंस्ट्रक्ट, सब कुछ खत्म कर दो, कोई काम का नहीं, सब बेकार है, सब कबाड़ है। दूसरे क्या करते हैं? क्लियर? ये कहते हैं दोबारा से सब कुछ होना चाहिए। ये कहते हैं जो ऑलरेडी है ना उसको सुधारा जा सकता है, उसका कंटेक्स्ट चेंज किया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव में कन्वर्ट किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये बात है। सो नीड नॉट टू वरी अबाउट थिंग्स। ये हो जाएगा। समझ में आ गया? मॉडर्निटी पर 20 क्या 500 वर्ड भी लिख सकते हो। ज्यादा लिखे बड़ा आ रहा है कि मॉडर्निटी, छोटा आ रहा है सिर्फ इन पे शामिल। छोटा तो जो मैंने 10 पॉइंट दिए, 10 नंबर का है तो इतने पॉइंट डाल दो, बहुत है। 20 नंबर का आ जाए फोको मॉडर्निटी क्रिटिसिज्म। व्हाट वाज मॉडर्निटी? मॉडर्न कंसेप्ट, हाउ दे डिस्कार्टेड दिस कंसेप्ट, व्हाट वाज द थ्योरी बिहाइंड इट, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कन्वर्ट करो, इंटरप्रिटेशन। दो बार है, सब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेशन, दो चीज पे ध्यान देना। क्या ध्यान देना? सब इंटरप्रिटेशन। किस पे? इंटरप्रिटेशन। यस। उसमें क्लिफोर्ड गिट्स को डाल दो, फिर डिस्क्रिप्शन। मेटानेरेटिव के खिलाफ फोकाट को डाल दो कि ये राइटिंग के खिलाफ था और ये रिलेटिविज्म का एक्सट्रीम था। क्लिफोर्ड गिट्स क्या कहता है? थिक डिस्क्रिप्शन,
मींस एक्सट्रीम रिलेटिविटी, और वो कहता है मेटा नैरेटिव्स को हटाओ, प्रोग्राम नैरेटिव्स को खत्म करो, कंटेक्चुअल हो जाओ, जो कल्चर का कंटेक्स्ट है वैसे हो जाओ, तभी लिख पाओगे। तुम्हारे चक्कर में 90 पन्ने की मॉडर्निटी पढ़ने पड़ गई। पूरी मॉडर्निटी पढ़ गया, 122 पन्नों का मैं पूरा। पहले मुझे समझना नहीं मॉडर्निटी का क्या खेल है, अदरवाइज हाउ कैन स्कोप द मॉडर्निटी। खाली 2 लाइन लिखाने से पोस्ट, कई भी क्वेश्चन में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोस्ट मॉडर्निज्म, राइट? क्रिटिकली डिस्कस अप्रोच एंड थॉट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म एंड हाउ इट क्रिटिसाइज मॉडर्निटी। अब पोस्ट मॉडर्निटी को क्रिटिक कैसे करोगे? अब यही मैं क्वेश्चन पूछूं, अब मैं इसको क्रिटिसाइज करूं, बता। पहली बात तो इनका अपना थॉट जो टोटली आइडियल है, नॉट विद द सब्जेक्ट, कोई एक्सपेडिशंस नहीं है, कोई फील्ड वर्क नहीं है, कोई केस स्टडी नहीं है, ओनली बंच ऑफ माइंड, मींस दे ओनली बेस्ड ऑन थॉट, इंटरप्रिटेशन एंड दिस थिंग, रियलिज्म से दूर है। ये इनका सबसे बड़ा क्रिटिक था। अब बंच ऑफ पीपल है जो रियलिटी से दूर है, अपने इंटरप्रिटेशन लेके बैठे हुए हैं, ये इनका क्रिटिसिज्म। बस इतना, ज्यादा बड़ा किसी के पीछे मत पड़ो, क्योंकि जब पूछा गया है, क्रिटिसिज्म तब बड़ा होता है जब आप उसके आगे की थ्योरी को बयान करना। जैसे मैंने मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज किया क्योंकि हमें पोस्ट मॉडर्निस्ट बताना है, इससे आगे कोई नई थ्योरी आई नहीं है। थॉट, बिलीफ, कंटेक्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी, आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस, हाँ रिजेक्ट करेगा। नैरेटिव्स, एथनोग्राफी, नैरेटिव्स, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेडिशंस, मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस, आइडियोलॉजी, सबको डिस्कार्ड करो। कैपिटलिज्म, सोशल, जो देखो हिस्ट्री, अब तुम्हें पता है कि हिस्ट्री का मतलब क्या है। ऐसा नहीं तुम्हारे दिमाग में पोस्ट मॉडर्निटी छा जाए और तुम हिस्ट्री को वैसे डिफाइन करो जैसे पोस्ट मॉडर्न ने किया था। ये दिमाग के बड़े तेज हो भाई साहब, 2 मिनट के अंदर छा जाते हैं। जैसे कम्युनिज्म है, अफीम है, एक बार आप कम्युनिस्ट के पास बैठ जाओ, तुम अगले दिन मुखर हो जाओगे, क्योंकि वो धेड़ते बहुत अच्छा है, तो सीना नहीं आता उनको। वो एक ऐसे बढ़िया मैकेनिक है जो स्कूटर को बहुत अच्छा खोल देंगे, जोड़ना नहीं आता। डिकंस्ट्रक्टिव है, रिकंस्ट्रक्टिव नहीं है। ये कम्युनिज्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा। दे डिड नॉट हैव बेटर सॉल्यूशंस। उन्होंने कहा कि सब कुछ सरकार के हाथ में हो, ठीक है, आपने बात मान ली, पर सरकार को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो सब सरकार भी अपने आप में फिर ऑटोक्रेसी हो गया, डिक्टेटर होगी। पहले डिक्टेटर कैपिटलिज्म था, वो हो गया, तो फर्क क्या पड़ा? फर्क क्या पड़ा? पहले प्राइवेट लोग खाते थे, अब सरकार खा रही है। पहले सब कुछ प्राइवेट ओनरशिप, कैपिटलिज्म, सब कुछ गवर्नमेंट ओनरशिप, कम्युनिज्म। फर्क कहां आया? आम आदमी तो दोनों में ही नहीं है। हाँ, सब कुछ एवरीथिंग शुड बी इन द हैंड ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड प्रोड्यूसर विल मेक द गवर्नमेंट। अथॉरिटी किसके हाथ में होगी? उनके हाथ में होगी। तो सरकार किनकी? मजदूरों, किसानों की। तो भाई किसी के भी हाथ में हो, आम आदमी की तो वही प्रॉब्लम है ना, कि तुम सरकार की राशन की दुकान जाकर लो, चाहे पेड़ की दुकान जाकर लो। जब अब चाइना के अंदर देखो तुम, जिसने आवाज उठाई वो कहां है? वो बताया था मैंने कि जी आपके पति कहां? जी गार्डन में है। कि दिख नहीं देगा, खोद के देखो। तो वही बात, ये बात कह रहे हैं। Communism means a system which favors the producers should have the authority. अब किसान मजदूर अपने हाथ में सत्ता ले ली, कम्युनिस्ट पार्टी बना दी। अब शासन तो पार्टी ने कर लिया ना, अब वो शासन बढ़ता ही जा रहा है, पावर उनके हाथ में आ गई। अब जिसके हाथ में पावर होगी, उपयोग तो वो कर रहे हैं ना। दुनिया तो वही रह गई, चाहे वो चाइना रहा हो, चाहे रशिया रहा हो। ये टूटे क्यों? व्हाई दिस इंडिकेशन टुक प्लेस? क्योंकि सॉल्यूशंस नहीं है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। हाँ, ये कौन सा? मार्जिनलाइज। अपने दिमाग में रखो पॉइंट्स। मैं कभी भी कहता हूं पॉइंट्स पे मत जाओ, क्योंकि तुम्हें फिर याद करना पड़ेंगे। अगर तुमने समझ लिया ना, तुम्हें कुछ याद नहीं करना है। डिकंस्ट्रक्शन, डीमिस्टिफाई इरेशनलिटी, सब्जेक्टिविटी, एक्सट्रीम रिलेटिविस्ट हो गया। आप सब कुछ की टेस्ट कर दो, काम खत्म हो गया। एग्जाम्पल गिट फॉर गिट्स, थिक डिस्क्रिप्शन, एक याद हो गया तो बहुत है। फोकस मेटा नैरेटिव के खिलाफ, 2 याद हो गए बहुत है, तीसरा नाम लेना ही नहीं अपने को।
याद ही नहीं रहेगा, 50 उखड़ के खड़े हो जाएंगे नए, हमें कुछ नहीं। मेटानेटिविटी के खिलाफ है कि जो भी आपने लिखा है उसका कंटेक्स्ट ही खराब है। जो साइंस ने ऑब्जेक्टिविटी के फॉर्म पे बनाया था, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक के नाम के, राइटिंग के नाम की कोई चीज ही नहीं थी उनके हिसाब से। भाई हमने क्या कहा, दे वर अगेंस्ट वन थिंग, किसके खिलाफ है वो? पॉजिटिविस्ट के खिलाफ है। मार्क्स वेबर क्या बोलता था? मैक्स वेबर, एंथ्रोपोलॉजी कल्चर इज ए साइंस, इट्स ए पार्ट ऑफ नेचुरल साइंस, देन इट शुड बी स्टडीड ऑन द साइंटिफिक वे। तो हमने कल्चर को क्या बना दिया? और सब्जेक्ट जिसको आप साइंस के तरीके से पढ़ोगे, तो कल्चर कल्चर कहां रही? जो साइंस बन गई। तो ये कहते पॉजिटिविस्ट खराब है। पॉजिटिविस्ट हमने किन लोगों को कहा था? Those people who introduced scientific method, scientific thing in the society, social cultural aspect, उनको हमने क्या वर्ड नाम दिया? पॉजिटिविस्ट। राइट? ये इनके खिलाफ है। कहते हैं साइंटिफिक क्या होता है सोसाइटी कल्चर में, साइंस कहां से आ गई? इनका अपना वे है, अपने कंटेक्स्ट है, अपना सिस्टम है, साइंस क्यों घुसा रहे हो भाई? तुम्हारे बनाए नियम इसमें क्यों डाल रहे हो कि ये टूल है, ये मेथड है, ये रिसर्च है, ये केस स्टडी है? तुम तो अपने हाथ में लेकर आ गए कि अगर मुझे ऑब्जर्वेशन करना तो 2 तरीके हैं, पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी। ऑब्जर्वेशन करूंगा तो पहले डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगा, इनडायरेक्ट करूंगा तो 2, फिर क्या होगा? कंट्रोल्ड होगा, अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड पार्टिसिपेटरी होगा, नॉन पार्टिसिपेटरी होगा। अरे तुम तो पहले से तैयार हो गए हो, तुम कर क्या रहे हो? तुम कह रहे हो मैं नॉन पार्टिसिपेटरी बाहर खड़ा होकर देखूंगा, वो कहेगा मैं पार्टिसिपेटरी अंदर घुस के देखूंगा। तरीके तो तुम दोनों का एक ही है, तुम सिर्फ ऑब्जर्व करने आए हो, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ कल्चर, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग। क्लियर? यही लफड़ा हो रहा है, यही की डिसीजन। पोस्टमॉडर्न डिसीजन है क्या? बंच ऑफ पीपल जिनकी अपनी आइडियोलॉजी है, जो साइंटिफिक को नहीं नकारते, राइट? जो पुरानी चीजों को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, नया कुछ भी नहीं है, राइट? नए थॉट नहीं, नई आइडियोलॉजी नहीं है, डिस्कंस्ट्रक्ट या रिकंस्ट्रक्ट की बात कर रहे हैं। आर्म चेयर है, खुद के केस स्टडी नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, कोई कहीं गया नहीं है। हाँ, जो डिकंस्ट्रक्ट कर रहा है वो सेप्टिसिज्म, जो रिकंस्ट्रक्ट वो एफर्मेटिव। नहीं, खुद तो इन सब आइडिया को खत्म करके नए सिरे से लिखो, जिसमें मार्जिनलाइज आगे हो, सब्जेक्टिविटी हो। लिखेगा कुछ ने? लिखो, तुम किस लिए हो? क्रांति वाले का बेटा थोड़ी मरता है, बावड़ा हो गया क्या? क्रांति वाले का बेटा मरा है क्या? क्या बात करते हैं? लड़ते नेता नहीं है, समर्थक है। नेताजी दोनों शाम को साथ बैठ के बढ़िया से डिनर करते हैं, अपोजिशन पार्टी दोनों के बच्चों में शादियां होती है, कुर्ते समर्थक है बेचारे। ये ध्यान रखना हमेशा। एट द एक्सट्रीम लेवल ना, पावर बिकम्स यूनाइट। यहां पावर एक ही है, यहां जाके हमें दिखाई देता है कि पावर अलग अलग है, पर अगर तुम ऐसे करके देखो तो पावर एक ही है। क्लियर? समझ में आया? ये प्रॉब्लम है। पावर ऑलवेज यूनाइट, पीपल डिवाइड। सीधी बात है ना। क्या प्रिंसली स्टेट के प्रिंस कभी भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ हुए? क्यों? पावर ऑलवेज विद पावर, पावर ऑलवेज विद लाइट। जस्ट लाइक सब इकट्ठा होकर चल जाते, सब जनता साथ होती। तो 1760 की बात बता रहा हूं, प्लासी वॉर खत्म हुआ, प्लासी का लास्ट, तो अंग्रेजों का जुलूस निकल रहा था, तो लोग ताली बजा रहे थे, पीपल वर क्लैपिंग। तो अंग्रेजों ने कहा यार, जिनकी जनता को फर्क नहीं पड़ा कौन आ रहा है कौन जीता, उसका क्या पॉलिटी है? लॉयल्टी नहीं है, पॉलिटी नहीं है, रूल करना बड़ा आसान है, खत्म। क्या किसी भी आदमी ने उठ के विरोध किया कि राजा जी का बेटा राजा क्यों बन रहा है? जब जुलूस निकल रहा था, वो हारे, नए राजा बने, नए राजा के लिए जुलूस, क्योंकि वो अंग्रेजों के साथ है, फिर भी जुलूस के, क्योंकि नए राजा बने, राजा जी की जिंदाबाद, पुराने राजा मर गए, खत्म हो गया। सो हियर वी कंक्लूड द पोस्ट मॉडर्निटी, राइट? अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है, दैट इज
थिक डिस्प्लेसमेंट की बात, एक्सट्रीम रिलेटिविज्म नहीं, फेवर में था। थिक, थिन नहीं होनी चाहिए। हाँ, थिन तो फिर थिन खिलाफ हो गया ना। वो कह रहा है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्सन इनटू कल्चर, ऐसा इसलिए उसने वर्ड दिया था न्यू एथनोग्राफी। डीप ले कॉक फाइट को कहा न्यू एथनोग्राफी वर्ड कहा उसने, न्यू एथनोग्राफी। तो उसने एथनोग्राफी का जो पुराना तरीका था उसको डिस्कार्ड किया है एक तरीके से। इफ यू से दैट इट इज न्यू एथनोग्राफी, इट मींस आई एम डिस्कार्डिंग द ओल्ड वे ऑफ एथनोग्राफी। ये था। सो नाउ दिस इज कॉग्निटिव अप्रोच। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ, यस, इट इज रिलेटेड टू मेंटल डिपोजिशन। हाँ, ये नहीं है कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी। कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी इज ऑल अबाउट द माइंड, मेंटल डिपोजिशन, इंटरप्रिटेशन, राइट? Cognitive anthropology is a branch of anthropology which deal with mental deposition. We deal with use of mind, understanding, interpretation, right? And in this way, it is very close to symbolic anthropology, right? तो इसका सिस्टम क्या था? ये किस चीज पे बात कर रहे हैं? These people talk about meanings, right? We should search meanings. If you want to write ethnography about a culture, important thing to know the meaning of symbols. Know the meaning of symbols. So उनका मेन इंपॉर्टेंट था मीनिंग जानो, इंटरप्रीट करो। और ये सब कहां से होता है? मेंटल डिपोजिशन। तो ये माइंड का यूज करना, अंडरस्टैंडिंग करना, इंटरप्रिटेट करना, मीनिंगफुल चीजों की बात करते थे, मीनिंग्स की बात कर रहा है। एंड मीनिंग इन द कल्चर कंटेक्स्ट, मीनिंग इन दी, तो किसी कल्चर को जानना है तो उस कल्चर की एक्टिविटीज का मीनिंगफुलनेस निकाल, उसी से आपको उस कल्चर के बारे में बेटर इंटरप्रिटेशन हो सकता है। सो फॉर बेटर इंटरप्रिटेशन यू नीड टू नो द मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मीनिंग ऑफ एक्टिविटीज, मीनिंग ऑफ सिंबल्स। तो इन दिस वे दे वर वेरी नियर टू द लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। ये वहां से लेकर आए, कहां से लेकर आए थे? लिंग्विस्टिक में। So they were people which were very near to, ये यहीं से उठा हुआ आंदोलन है। कहां से? जो किसकी बात करता है? ये बात करता है फोनेमिक्स की, साउंड्स। इन लैंग्वेज नो द मीनिंग ऑफ सिंबल्स, देन यू कैन नो द लैंग्वेज। लैंग्वेज को जानने के लिए तुम्हें उनके सिंबल्स का मीनिंग जानना जरूरी है। तो इनके हिसाब से दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड। इन लैंग्वेज वी हैव टू थिंग्स, वन विच आर स्ट्रक्चर्ड एंड वन विच इज नॉट स्ट्रक्चर्ड। लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर्ड, सिंबल्स डिजाइंड। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जैसे लिंग्विस्टिक में होता है कि हर सिंबल का एक मीनिंग होता है, हर एक चीज का एक मीनिंग होता है, उसके पीछे एक साउंड है, उस साउंड के सब सिंबल बना है। सेम चीज कल्चर में होती है कि हर चीज का एक मीनिंग होता है। एंड टू नो द कल्चर नीड टू नो द मीनिंग, right? So for these people to know the culture, you need to know that hidden meaning which is behind that activity, behind that symbol. तो ये इस चीज की बात करते थे, क्योंकि ये चीज इन्होंने कहां से पढ़ी? लिंग्विस्टिक्स से। लैंग्वेज क्या है? bunch of symbols but with the deep meaning, but with the, because these symbols are related to different sounds, right? और ये साउंड्स मिलकर एक प्रॉपर लैंग्वेज बनाते हैं। तो उनका लैंग्वेज है कल्चर, पूरा एक लैंग्वेज क्या है? एक कल्चर है। और उस कल्चर के अंदर जो सिंबल्स यानी एक्टिविटीज है, उसके मीनिंग को जानना, कल्चर को जानना है। कि भाषा में जब तक आप उसका अल्फाबेट नहीं जानोगे, क्या लैंग्वेज समझ में आएगी? नहीं। लिंग्विस्टिक में सिंबल ही तो और है क्या? हमने पढ़ा था लिंग्विस्टिक में क्या सिंबल्स ही तो है, साइंस सिंबल्स। तो उन्होंने कहा कि आपको मीनिंग जानना है। कॉग्निटिव अप्रोच इज ऑल अबाउट द नो द मीनिंग। सो इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, सो वी हैव सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, इन दिस वे वी हैव आल्सो डिफरेंट मीनिंग, एंड दैट मीनिंग इज कल्चरली कंटेक्सचुअल।
किसी भी कल्चर का मीनिंग जानने पर ही तुम उस कल्चर के सही कंटेक्स्ट को पता कर सकते हो। जैसे कॉन्कन और टाइलर थे, तो कॉन्कन ने होनुलू के अंदर काम किया, द ट्राइब वाज होनुलू। उस ट्राइब में उसने जाके देखा कि लोगों का कलर के 7 अलग अलग कलर का अलग अलग पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने कल तुम्हें बताया था, पर्सपेक्टिव बताया था, ब्लू मींस लिक्विड। अब वो लिक्विड को ब्लू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका परसेप्शन है, क्योंकि उन्होंने पानी को देखा है। जैसे वो कहते हैं बाइल ब्लैक होता है, कौन कहते थे? हाँ, कौन था? ट्राइब का नाम बताओ, और काम किसने किया? हाँ, नदेम्बू। नदेम्बू काम किसने किया है? विक्टर टर्नर। मैंने कहा बैक एंड फोर्थ जाओ। अब वो बाइल को ब्लैक कैसे कह सकते हैं? उनका कंटेक्स्ट है, बाइल तो येलो होता है। अगर साइंस वाले बंदे से पूछे तो बाइल तो येलो होता है, पर उनके कंटेक्स्ट में बाइल कैसा है, ये तुम वहां जाके उस कंटेक्स्ट में जानोगे, राइट? अब एक बंदे ने अगर ब्लैक कलर लगाया है, तो उस ब्लैक कलर को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो नेचुरल, नेचर एंड ह्यूमन, एन इंटरलेशन बिटवीन नेचर एंड नेचर इज क्रिएटेड बाय, यस, सो अ यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एंड, यस। तो जितनी भी सेरेमनीज होगा उसमें उन कलर को यूज करेगा टू शो द यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एंड नेचर। अब इस बात को उस कंटेक्स्ट में ही जाना जा सकता है। तो ये जब इसने होनुलू में काम किया, उसको 7 कलर्स नजर आए, और उनका पर्सपेक्टिव आपको वहां रहकर ही दिया जा सकता है कि कलर का मतलब होता है उसमें क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर, उसका प्रेजेंटेशन, उसके पीछे का मीनिंग, तब जाके तुम्हें कलर के बारे में पता लगेगा। रेड का मतलब रुकना ही क्यों होता है? हाँ, क्यों? ये हमारे मॉडर्न कल्चर के हिसाब से है कि रेड दिखती तुमको, राइट? अगर एक स्त्री तुम्हारे सामने सारी सफेद कपड़े पहने हुए तो तुम क्या कहोगे? क्यों? वेस्टर्न वर्ड होता तो क्या कहते हैं? दुल्हन है, क्लियर? अगर आपने ब्लैक कोट पहना, ब्लैक टाई लगाई है, यहां पर आप शादी में जा सकते हो, वहां से फ्यूनरल में जा सकते हो। इन वेस्टर्न वर्ल्ड फ्यूनरल में ब्लैक कोट ब्लैक टाई होती है, हमारे यहां तो शादियों में दिख जाएगा तुमको ब्लैक कोट और ब्लैक टाई, टाई जबकि शोक का प्रतीक है ब्लैक वहां पे, पर यहां पहनी जा रही है। मैं भी पहनता हूं, बिकॉज आर कंटेक्स्ट इज डिफरेंट। यही बात वो कह रहे हैं। कॉग्निटिव अप्रोच कहता है यू नीड टू नो बाय द मीनिंग। कॉग्निशन मतलब अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग, ये बात ये कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि किसी भी कल्चर को जानने के 2 तरीके होते हैं, राइट? एक वर्ड उन्होंने कौन सा लिया और दूसरा लिया इसी से लिंग्विस्टिक्स में पहले बन चुकी थी। ये फोनेमिक वर्ड है, एमिक और एटिक, ये वर्ड हम उसी से तो लेकर आए हैं, फोनेमिक, फोनेटिक। ये उससे इंस्पायर हुए कि जैसे लैंग्वेज में सिंबल्स होते हैं उनके मीनिंग्स होते हैं, वैसे ही कल्चर में जो सिंबल्स है उनके मीनिंग होते हैं। मीनिंग को जानो, लैंग्वेज सिंबल्स के मीनिंग जानो, लैंग्वेज को जानो, वैसे ही कल्चर के सिंबल्स को जानो, कल्चर के मीनिंग को जानो। सेम चीज अप्लाई हो रही है। तो इन्होंने स्कीमेटा वाले टोटल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, लैंग्विस्टिक्स से पूरी तरह से प्रभावित है। यह कहता है कि जैसे लैंग्वेज में एक स्कीम होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, वैसे ही कल्चर में कुछ चीजें स्ट्रक्चर्ड है। जैसे मैंने बताया, आप गाड़ी चला रहे हो, मैनुअल मोड है, तो आपको पता है ABC है, कब गियर लगाना है, फर्स्ट गियर, सब कुछ, दैट इज, एंड वो आपको सिखाया जाता है। दैट इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड, कल्चरली कंस्ट्रक्टेड, वो तुम सीखते हो, लर्न करते हो। तो उनका स्कीमेटा सिस्टम होता है। जब कल्चर को जानना हो तो आपको स्कीमेटा मतलब स्कीम्स बनानी पड़ती है। इसी आधार पर तो क्वेश्चनरी बनती है। व्हेन टॉक अबाउट इंटरव्यू एंड क्वेश्चनरीज, जो इंटरव्यू होते हैं उनका बेस क्या है? स्कीमेटा। आप एक स्कीम बनाते हो कि हमें ये इंटरव्यू लेना है, ये क्वेश्चंस पूछने हैं, आप पहले बनाते हो ना, उसके पीछे कौन सी चीज काम करती है? तुम्हारा स्कीमेटा काम कर रहा होता है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, इंटरव्यू इन स्ट्रक्चर फॉर्म, क्वेश्चन शेड्यूल स्ट्रक्चर फॉर्म। तो वो टेक्निक यू यूज टू नो अ कल्चर दैट इज ऑलरेडी प्रोग्राम्ड, एंड दिस प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चनरी, शेड्यूल, इंटरव्यूज, ऑलरेडी क्लियर है ना? तो ये कहता है कि किसी भी चीज को जानने की पहली चीज है स्कीमेटा। बट फिर उन्होंने बात की कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो रैंडम होती है, सडन होती है।
तो उसने उसके लिए क्या वर्ड यूज किया? कनेक्टिविटी। देयर आर सम थिंग्स विच आर बियॉन्ड दिस स्कीम्स विच कैन नॉट बी लर्न बाय स्कीम्स दैट वी कैन इंटरप्रेट बाय द कनेक्टिविटी। जैसे मैंने कहा अचानक कोई सामने आ जाए, तुमको ब्रेक मारना पड़े, तो उसमें क्या मैनुअल याद आएगा क्या? नहीं, जो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी रेंडमली है वो बाहर आएगा, राइट? अचानक तुम्हें कोई अपना फ्रेंड मिले, तुम जाके गले लगा लिया, तुम देखा नहीं कि इन टर्म्स ऑफ लोग क्या देख रहे थे, तुम्हें अचानक इतना भाव आया कि तुमने गले लगा लिया, तो क्या ये तुम्हारे कल्चर में प्रोग्राम था? नहीं, अचानक के भाव थे। तो उसने कल्चर को जानने की दोनों चीज चाहिए, स्कीमेटा भी चाहिए और कनेक्टिविटी भी चाहिए। तो टाइलर ने यूज किया कोया ट्राइब पे। इंडिया के अंदर ट्राइब है कोया, कोल, कोया, खोंड, राइट? तो वहां पे काम किया, तो उसने वहां पर बैम्बूज देखे। हमारे हिसाब से बैम्बू एक ही होता है, हरा, उनका से बैम्बू 7 तरह के होते हैं, राइट? ये उनका कल्चर मीनिंग है कि ये बैम्बू ये है, ये बैम्बू ये है, ये बैम्बू ये। जैसे हम कहते हैं ये सफेद कपड़ा, ये पीला कपड़ा, ये लाल कपड़ा, ये हरा कपड़ा। सफेद इस दिन नहीं पहनना, पीला इस दिन नहीं पहनना, हरा। अरे वो क्या भाई साहब, पहनना ही तो है। बार बार कलर में क्या फर्क? तुमको नहीं फर्क पड़ता है। अगर भगवान की पूजा करना तो पीला पहनो, साधु हो तो गेरुआ पहनो, राइट? शांति पाठ करना सफेद पहनो। अगर आपके घर में डेथ होगी तो यहां सफेद डालो। क्यों? ये कल्चर कंटेक्स्ट है। ये वही जान पाता जो कल्चर का मीनिंग जानता हो। यही बात ये कहते थे। सो स्कीमेटा, कनेक्टिविटी। और दो का नाम लेंगे, एक का नाम है अपना टाइलर और एक है हमारा कॉनकन। तो वो कह रहे बैम्बूज का अगर 7 टाइप्स जानना है ना, तो तुम्हें पहले उस कल्चर के मीनिंग को जानना पड़ेगा, वरना आपके लिए तो बैम्बू बैम्बू है, राइट? हाँ, मीनिंगफुल। अप्रोचेज ये अप्रोचेज है, स्कीमेटा एंड कनेक्टिविटी। स्कीमेटा विच ऑलरेडी प्रोग्राम स्ट्रक्चर, जो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का थॉट लेके आता है। पर कुछ चीजें जो स्ट्रक्चर से बाहर है ना भाई, जो प्रोग्राम्ड नहीं है, उनको कैसे जानोगे? तो उनको जाना कनेक्टिविटी के थ्रू। तो ये है कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी। टाइलर ने कोया ट्राइब पे काम किया, मैंने लिख के दिया तुम्हारे इसके 7 तरह के बैम्बूज बताता है वो। कहता है और उसको जानने के लिए तुम्हें उस कल्चर का मीनिंग जानना होगा, बैम्बूज का क्या है, क्या पर्सपेक्टिव है, राइट? कहते जी अगरबत्ती घर में मत जलाओ। क्यों? क्योंकि वो बैम्बू की बनी होती है। और कहते हैं बांस सिर्फ एक टाइम जलता जब मर जाए। इस आधार पे लोग घर पे अगरबत्ती नहीं जलाते, क्योंकि अगरबत्ती बैम्बू से बनती है। अगरबत्ती का जो अंदर का जो लकड़ी वो बैम्बू है। और कहता है बैम्बू तब जलता है जब हाँ, तो लोग धूप जलाते हैं, बैम्बू नहीं जलाते हैं। कहते बांस जलाना शुभ होता है। 70% अगरबत्ती खपत कम हो गई। आप आग लगा लोगे, भाई साहब बांस जल रहा है, तुम भी जाओगे अगरबत्ती बुझा ला भाई ला। तो अब तुम देखो उठा के तो धूप चल रही है। क्यों? कंटेक्स्ट। उसके पीछे मीनिंग क्या है कि बैम्बू तब जलते हैं जब किसी का फ्यूनरल होता है, राइट? तो लोगों ने अगरबत्ती छोड़ दी, राइट? मेरे को पता, मेरे फ्रेंड थे, तो उन्होंने एक स्कूटर खरीदा भाई, ठीक है? तो अब भाई ने स्कूटर के आगे लिखा लिया राम का नाम सत्य है। पहले लिखा है राम नाम सत्य है, ठीक? घरों ने ऑब्जेक्शन कर दिया, अरे क्या कर रहा है? वो क्या मैंने गलत क्या लिखा है? मैंने लिखा है राम नाम। वो क्या है? लोग पढ़ के कह रहे, पड़ोसी आगे पढ़ के क्या लिखा है भाई? घर का के खड़ा कर दिया राम नाम सत्य है। कि घुसते ही अब शकुन है, घर में घुसते राम नाम सत्य, थोड़ा छाती पड़ जाए। क्यों? मरने के बाद यही बोलते हैं। लाइन बिल्कुल सच है, पर वो किस कंटेक्स्ट में है, राइट? तो उन्होंने लिखा दिया राम का नाम सत्य है। वो लास्ट में एक आदमी उसको उखाड़ के ले गया उसके आगे के, कि सुबह उठते थोड़ा दिखता है राम नाम सत्य है। घूमने का दिल नहीं करता है, सामने स्कूटर खड़ा है, देखने के छाती पड़ जाती। और ये एक नाम ऐसा फिर पूरे दिन आपके दिमाग में घूमता है। कई बार क्या होता है, चीजें दिमाग में लगातार घूम रही है कि सुबह उठ राम नाम सत्य, राम, अरे बाप रे, लगता है कि मृत्यु आ गई। मुड़ के देखता कि पीछे तो नहीं खड़े यमराज जी के, हो गया सत्य आजा। ऐसा लगता है कि मतलब लोगों को लगता है कि इसको बोलते ही यमराज जी आ जाएंगे। वो होता है ना कि स्पेसिफिक वॉइस है, उस मॉड्यूल उस फ्रीक्वेंसी को सीधे यमराज जी कैच करते हैं। जैसे आपने बोला यमराज जी को अच्छा कोई आवाज दे रहा है, आ जाए। तो लोग अपने घर में कभी कोई बोला आज तक? कभी मेरे को बोला बता दो।
मरे नहीं बोलेंगे, डांट है। उन्हें लगता है छोरा तो मरे, तो मारने में तुला क्या, ये तो चाहता है आज ही जड़ जाए क्या, जिंदा ही जान दो क्या, क्यों जिंदा बात दो, हम तो मरने को तैयार है, तुली लगा दो यहीं गए। इतना ज्यादा हमारी कल्चर के अंदर किसी चीज का डीप मीनिंग देखो आप, कंटेक्स्ट बता रहा हूं, डीप मीनिंग है, मैं बोल रहा हूं जाके पता लग जाएगा कितना डीप मीनिंग है चीजों का, राइट। तो एक वो बच्चे होते ना कि जिनकी स्कूल शमशान के पास में थी, तो जब भी कोई बूढ़ा मर जाता था तो छुट्टी हो जाती थी। एक दिन पास से दो बूढ़े जा रहे थे, तो बच्चे बोले देखो 2 छुट्टियां जा रही है उनके लिए मरने का मतलब क्या है, देखो 2 छुट्टियां जा रही है तो यही कल्चर कंटेक्स्ट और मीनिंग है जो आप सिखाते हो, राइट। आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे बड़े ये आवाज निकालते हैं, कहते हैं कि दादाजी कैसे बोलते हो, बच्चों को सिखाया जाता है ये कि आपके कल्चर कंटेक्स्ट मीनिंग है, ये कॉग्निटिव है, एक पहचान है, आइडियोलॉजी है। तो यहां पर हमारा थिंकर्स खत्म होता है, ये इसी को बोलते हैं कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का नया नाम है एथेनोसाइंस, राइट, एथेनोसेमेटिक, एथेनो। देखो कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी का एक नाम आता है, क्या आता है, एथेनोसाइंस, राइट। टाइलर, ये वो टाइलर नहीं है भाई, ये डेविड टाइलर है, ये अपने ईबी टाइलर साहब नहीं है। ईबी टाइलर तो खुद ही बम्बू से बाहर थे, उनको तो आत्मा ही आत्मा दिखती थी। व्हाट इज रिलीजन, बिलीफ इन स्पिरिट्स। लगता है रात को सोते समय भाई साहब जंगल में आए हो, खा के जाना, रोटी खा के जाना उसके बाद तो खा के गए। सो एथेनोसाइंस, एथेनोसेमेटिक्स हमने क्या कहा था, स्टडी ऑफ सिंबल्स, स्टडी ऑफ साइंस, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया था, सेमेटिक्स। सो एथेनोसेमेटिक्स, एथेनोसाइंस, न्यू एथेनोग्राफी, एक ही मतलब कॉग्निटिव। क्लिफोर्ड गिट्स कौन है, सिंबोलिज्म ही तो है। न्यू एथेनोग्राफी वर्ड कौन लेके आया था, क्लिफोर्ड गिट्स। तो सिंबल की बात ये भी कर रहे हैं, ये भी तो सिंबल्स की बात कर रहे हैं कि वी नीड मीनिंग ऑफ सिंबल्स। ये किस चीज की बात कर रहे हैं, मीनिंग। किसकी बात कर रहे हैं, मीनिंग। टू नो द कल्चर, नो द मीनिंग ऑफ सिंबल्स, नो द मीनिंग ऑफ एक्टिविटीज। और ये कहां से इंस्पायर हुए, लिंग्विस्टिक्स से। कहां से इंस्पायर हो रहे हैं, लिंग्विस्टिक्स से, राइट। ऑफ हाइपोथेसिस थे उससे डिटरमाइंड है कि हर चीज का एक मीनिंग होता है। तो जितने भी लैंग्वेज उसका अपना मीनिंग है। अब इस बात पे पोस्ट मॉडर्निस्ट मॉडर्निस्ट भिड़ गए। कैसे भिड़ गए, तो जो मॉडर्निस्ट है वो ये मांगते हैं कि ट्रूथ लैंग्वेज के बियॉन्ड भी हो सकता है। भाई तुम्हारी लैंग्वेज के बियॉन्ड ट्रूथ हो सकता है कि लैंग्वेज तुम्हारा स्ट्रक्चर्ड है, ट्रूथ कहीं और भी खोजा जो तुम्हारी लैंग्वेज में हो ही नहीं, वो भी ट्रूथ हो सकता है। पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं अच्छा जो तुम जानती नहीं वो कैसे ट्रूथ हो जाएगा, तुम्हारी बाउंड्री तुम्हारी लैंग्वेज है, तो देयर इज नो ट्रूथ बियॉन्ड द लैंग्वेज, क्योंकि तुम उतना ही जानते हो। क्या लैंग्वेज के बारे कोई ट्रूथ तुम्हें पता है जिसको तुम्हारी लैंग्वेज डिफाइन न कर सके, ऐसा कोई ट्रूथ बताना मेरे को। एनी ट्रूथ विच इज नॉट डिस्क्राइब्ड इन योर लैंग्वेज। वही तो वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज में ट्रूथ खोजो ना, लैंग्वेज, वो कह रहे हैं तुम्हारा ट्रूथ लैंग्वेज में, क्योंकि बाहर की दुनिया तो जो लैंग्वेज नहीं वो तुम्हारी दुनिया ही नहीं हो सकती। एलियन के ट्रूथ तुम्हारा है क्या, तुम समझे, तुम्हारे पास कहां है, तुम्हारी लैंग्वेज के बियॉन्ड एलियन। अगर वर्ड एलियन तो ट्रूथ है और कोई दूसरा जाए तो ट्रूथ ही नहीं तुम्हारे लिए। तो तुम्हारा ट्रूथ का दायरा तुम्हारा एक्सप्रेशन है, एंड लैंग्वेज इज अ वे ऑफ एक्सप्रेशन, वो तुम्हारा वर्ड है। साइंस कहता है नहीं, ट्रूथ लैंग्वेज के बियॉन्ड भी हो सकता है। लड़ाई लड़े तो आपके पास वर्ड है ना, वो कहता है लैंग्वेज के अंदर ही, तो लैंग्वेज के बाहर थोड़ी है। पर वो कहते हैं कि कुछ दुनिया ऐसी है जो तुम्हारी लैंग्वेज के दायरे में। ये लो जो क्लिफोर्ड गिट्स ने कहा था, रिलेटिविटी, एक्सट्रीमलिज्म, पोस्ट मॉडर्निस्ट, एथनोग्राफी में जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी कल्चर, न्यूथनोग्राफी डीप डीप थिक डिस्क्रिप्शन,
कल्चरल इन्वॉल्वमेंट, एक्सट्रीम रिलेटिविज्म, राइट? ये है हमारा कॉग्निटिव। होनोलू पे काम किया ना, कौन करना है? इसने कहा था कि कलर प्रेजेंटेशन जो है उसको जान की कोडिंग जानने के लिए उसका मीनिंग जानना जरूरी है, कंटेक्स्ट जानना जरूरी है, उसके बिना आप नहीं समझ पाओगे। जैसा मैंने इंडियन कंटेक्स्ट में बताया, सफेद का क्या है, लाल शादी जोड़ी में क्यों पहनते हैं, अब तो चेंज हो गया है, कियारा के बाद में काफी चेंज हुआ है, कियारा के बाद में और आलिया के बाद में पेस्टल कलर आने लग पड़े हैं, लाल ऑफ रूट हो गया है, राइट? पर्ल आगे आ गया है, लाइट पिंक विद पर्ल, यू नो, न्यू कलर्स। हाँ, कि ये पानी नहीं, ब्लू का कंटेक्स्ट लिक्विड है, अब जहां लिक्विड वहां ब्लू, राइट? सो दिस वाज द एंड ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थिंकर्स। अब हमारे पास जो नया आएगा वो आएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी इन एंथ्रोपोलॉजी। मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट तुम्हें उसका बताता हूं कि हम कैसे कैसे करेंगे। देखो, व्हाट इज रिसर्च? इट इज टोटल इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन लॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, राइट? इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन लॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स मीन्स विच इज साइंटिफिक। तो रिसर्च रिलेटेड विद द साइंस टू नो द थिंग्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर। Search and research. So research is all about things which are scientifically experimented, scientifically observed, scientifically analyzed, right? And then make a general conception about things. तो वो सारा सिस्टम है रिसर्च। तो हाउ एंथ्रोपोलॉजिस्ट research in the field of anthropology, how they conclude things, how they make concepts, how they generalize things, that is a part of this topic. What tools they use, what method they use, right? How they study a culture, a society, क्या है वो सब हम पढ़ेंगे। तो इन दिस वे हमारे पास देखो 3 चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट से, मैं एक सिंपल जनरल तुम चीज को बताता हूं। When we read something first time, our mind collect data, and what is the function of our brain? To arrange that data in an organized manner. When you arrange these data in an organized manner, it becomes information, right? And when you interpret and process this information, it converted into knowledge or called as understanding. And when you apply it, it is called the intelligence or wisdom, राइट? तो एक सिस्टम है डेटा कलेक्शन से लेके और फाइनल कंसेप्शन बनाने तक का, ये चीज यहां पे होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि टूल क्या होते हैं, राइट? टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन। सबसे पहले हमें क्या कलेक्ट करना है? डेटा। पहला काम क्या है? कलेक्शन ऑफ, राइट। सेकंड, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। थर्ड, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तरीके कैसे इंटरप्रेट कर, जैसे हमको डेटा मिले, हम किसी कल्चर में गए, हमें डेटा मिले, वहां पे फैमिली के, मैरिज के, हमने डेटा इकट्ठे किए, डेटा इकट्ठे कर लिए। अब इनको ऑर्गेनाइज अरेंज करेंगे तो वो क्या निकल के आएगी? क्या निकल गया? इंफॉर्मेशन। एंड देन वी शैल इंटरप्रेट दिस इंफॉर्मेशन, राइट? तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? एक लॉजिकल थिंग में। एक तुम्हारे पास में उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, और फिर उस अंडरस्टैंडिंग को तुम प्रेजेंट करोगे इन टर्म्स ऑफ थ्योरी। सेम चीज हमने यहां पे करनी है। कलेक्शन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये 3 चीज पे रिसर्च टिका हुआ है, राइट? अब पहली बात के डेटा कलेक्ट कैसे करें, तो टूल्स है। टूल्स क्या है? टूल्स वो चीज होते हैं जो एक स्किल है, जिसके लिए वर्ड यूज किया जाता है टेक्निक। टूल्स को यूज करने की तरीका क्या कहता है? टेक्निक। व्हाट इज टेक्निक? टेक्निक मींस यूजिंग ऑफ अ टूल और स्किल। एप्लीकेशन पार्ट, कौन सा पार्ट है? एप्लीकेशन पार्ट। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ ए टूल टू कलेक्ट डेटा और ए स्किल, उसको हम कहते हैं टेक्निक। एंड द प्रोसीजर बिहाइंड द टेक्निक
is called as method. Right? Method is with procedure, technique with tools और application. तो जब आप ऑपरेशन के टर्म में बात करते हैं तो उसको बोलोगे टूल, जब प्रोसीजर के टर्म में बात करते हो तो उसको बोलोगे मेथड, और ओवरऑल पूरा सिस्टम किस पे बेस्ड है, वो है मेथडोलॉजी. टेक्निक मींस यूजिंग दैट टूल, एप्लीकेशन, प्रोसीजर और एप्लीकेशन और ऑपरेशन, तो ये हो गया टूल जिसको बोलते हैं टेक्निक. एप्लीकेशन ऑफ टूल और स्किल इज कॉल्ड एज टेक्निक. राइट? बहुत सारी टेक्निक हो जिनके पीछे प्रोसीजर क्या है, वो हो गया मेथड, और पूरे सिस्टम के पीछे क्या ऑपरेट करना है, वो हो गया मेथडोलॉजी. अ थॉट बिहाइंड होल प्रोसेस इज मेथडोलॉजी. राइट? प्रोसीजर कैसे होगा, छोटा छोटा मेथड, उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, टेक्निक. तो ये टेक्निक, मेथड, मेथडोलॉजी. राइट? तो अब हमसे पूछा गया भाई टूल्स क्या है डेटा कलेक्शन के, यानी आप क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं. तो हम कहेंगे बहुत सारी टेक्निक है. क्वेश्चनरी, शेड्यूल, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन. अब कभी मेथड क्या, मेथड इससे बड़ा कर लो तो साइंटिफिक मेथड हो सकता है, हिस्टोरिकल मेथड हो सकता है, उसके बाद में क्रॉस कल्चर मेथड हो सकता है, एथनोग्राफी इज आल्सो ए मेथड, उसके बाद में जेनेलॉजिकल मेथड हो सकता है. मेथड है ना लिखने का, एथनोग्राफी इज राइटिंग समथिंग. तो उसके बाद में आपसे पूछ लिया और कौन सा मेथड, आपने कहा जी ऑब्जर्वेशन मेथड हो सकता है, मेथड है. अब कई बार टेक्निक और मेथड एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं. जब आप ऑपरेशन की बात करते हैं तो वही टेक्निक है, और प्रोसीजर की बात करो तो मेथड है. पर फाइनली हमें समझना, हमारी टॉपिक है, पहला टॉपिक हमारा था फील्ड वर्क ट्रेडिशन. क्या टॉपिक आता है, फील्ड वर्क ट्रेडिशन. अब ये फील्ड वर्क क्या होता है, तो पाउडर मेकर नाम है, ध्यान रखना. पाउडर मेकर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे हैं, हमारे बोलते हैं चूनगरा. चूनगरा जो चूना बनाते हैं उनके लिए वर्ड होता है चूनगरान. इस चूनगरान को अंग्रेजी में जो लोग ये काम करते थे लाइमस्टोन का, उसके लिए वर्ड है पाउडर मेकर. जातियां सब जगह ऐसी, जब ऑक्यूपेशन बेस्ड जातियां बनती है ना तो ऐसी बनती है. क्यों, स्वर्णकार नहीं है, लुहार नहीं है, कुम्भकार नहीं है, है ना. वैसे ही इंग्लिश में है पाउडर मेकर, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, है ना, ऑक्यूपेशन बेस्ड. दीज आर कॉल्ड द कास्टास. तो पाउडर मेकर बोलता था फील्ड वर्क इज द स्टडी ऑफ पीपल इन देयर नेचुरल हैबिटेट. फील्ड वर्क इज द स्टडी ऑफ पीपल इन देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब आप लोगों को उनकी जगह जाकर अगर आप करते हो तो उसको बोलते हैं फील्ड वर्क. क्लियर? फील्ड वर्क मींस आप अपने घर पे बैठ के नहीं, उनकी जगह. सो फॉर दीज पीपल अ कल्चर इज ए लेबोरेटरी. जो कल्चर जिस पे काम करे वो कल्चर अपने आप में पूरी लेबोरेटरी है, वो वहां जाके काम करते हैं, इसको बोलते हैं फील्ड वर्क. तो हमारे पहले है हिस्ट्री ऑफ फील्ड वर्क में फील्ड ट्रेडिशन कैसे स्टार्ट हुआ, तो हम बात करें जी कांते से स्टार्ट हुआ. उसके बाद कौन आया कि जी, उसके बाद में आप सबसे बढ़िया नाम देते मॉर्गन. मॉर्गन ने बहुत तगड़ा काम किया. इराक्वस इंडियंस, और एक बुक लिखी थी लीग ऑफ इराक्वस, अ बुक लीग ऑफ इराक्वस. उसने इराक्वस से काम किया, फैमिली, मैरिज, किनशिप. इराक्वस इंडियंस, और किस किस पे काम किया, फैमिली, मैरिज, किनशिप. मॉर्गन सबसे पहले क्लासिफाई कर रहा है, हमने देखा इवोल्यूशनरी था. उसके बाद में टाइलर है, फ्रेजर है, हमने देखा था. बट इनका फील्ड वर्क इतना मजबूत नहीं था. टाइलर ने भी फील्ड वर्क किया है बट बहुत थोड़ा सा. उसके बाद में दूसरा तगड़ा फील्ड वर्क में आता है, उसका नाम आता है फ्रेंच बोआस. फील्ड वर्क ट्रेडिशन का फादर फ्रेंच बोआस. कहां काम करा, कनाडा. कनाडा में कहां पे काम कर, कनाडा कौन बोलता है, हमारा सारा पंजाब कनाडा ही बोलता है. इट्स नॉट कनाडा, इट्स कनाडा. तो कनाडा में बफिन आइलैंड है और वहां पर रहते हैं एस्किमोज और इन्यूट्स. तो फ्रेंच बोआस का सारा काम उन पर था. बफिन, बफी कहां पे था, बफी, अरे बर्फी मूवी में बफी, बफी बोलती है उसको, प्रियंका चोपड़ा बोलती है ना बफी. तो बफी आइलैंड था. सो ऑन दैट बफिन आइलैंड, ऑन दिस बफिन आइलैंड, उन्होंने वहां पे काम किया, किस पे, एस्किमोस पे.
और ये फ्रेंच बॉस पहला पसंद था हु फोकस्ड ऑन फील्ड वर्क ट्रेडिशन एस्टैब्लिश एंड पोस्टुलेट्स कि आपको फील्ड वर्क में क्या करना चाहिए. एंड देयर ही प्रोपोगेटेड द थ्योरी ऑफ कल्चर रिलेटिविज्म. कल्चर रिलेटिविज्म. अप्रोच एमिक. तो अप्रोच की बात कल्चर के, आपके पास एमिक अप्रोच होनी चाहिए, आपके पास रिलेटिविज्म होना चाहिए, आपके पास उनकी लैंग्वेज होना चाहिए, आपको लंबे समय तक काम करना चाहिए, आपको उनके डेटा कलेक्ट करने चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ दिस ही प्रोपाउंडेड अ थॉट कॉल्ड एज हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म. राइट. इंफॉर्मेशन ऑफ नेटिव लैंग्वेज, लॉन्ग ड्यूरेशन, communication, unbiased, not interrupting, right? Amic approach plus amic approach plus culture relativism and data collection, unique culture, उसके आधार पर बना दिया historical particular. ये फ्रेंच बॉस जो फादर ऑफ फील्ड वर्क ट्रेडिशन कहलाते हैं. उसके बाद कौन है? डिफ्यूजनिज्म का ले लो, नीचे नीचे कौन था? WHR रिवर्स. पहला सोशोलॉजिस्ट है जो जाके फील्ड वर्क कर रहा है. और कहां पे कर रहा है? टोडाज, बफेलो कॉम्प्लेक्स. बफेलो कॉम्प्लेक्स टोडा में जाता है. उसके बाद कहां जाता है? वेडा श्रीलंका जाता है. उसके बाद कहां काम कर रहा है? मेलनेसियंस पे काम कर रहा है. डिसअपीयरेंस ऑफ यूजफुल आर्ट्स. तो ये फील्ड वर्क रिवर्स आ. उसके बाद हुआ एक टॉरस एक्सपीडिशन. पहले क्या थे? इन अमेरिकन को फ्रेंच बॉस को काम करते देखा ब्रिटिशर्स ने, उनका हम भी फील्ड वर्क ट्रेडिशन करेंगे. तो पहला जो ब्रिटिशर्स एक्सपीडिशन हुआ उसको नाम दिया गया टॉरस एक्सपीडिशन. राइट. इस एक्सपीडिशन में ये लोग पैसिफिक एरिया में जाते हैं और वहां जाके जो वहां के लोग हैं उनके किनशिप और सेक्सुअल रिलेशंस पे काम करते हैं. और काम करके उसमें कौन कौन मेन विदेन गए थे? उसका हेड था हेडन, साथ में था रिवर्स और स्लीबन. इन तीनों ने जाके वहां पे काम किया. ब्रिटिश फील्ड वर्क का स्टार्ट किया. टॉरस एक्सपीडिशन हुआ. उसके बाद में आपका सबसे बड़ा नाम आता है ब्रेनिस्लॉ मेलिनोस्की, जो सबसे पावरफुल रहा फील्ड वर्क ट्रेडिशन में. और उसने पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, जिसकी बात फ्रेंच बॉस करता है, उसका वास्तव में फादर कौन बना? मेलिनोस्की. तो ये वही बात 1 से 1.5-2 साल रहा वहां पे. कहां पर है? ट्रोबियान. ट्रोबियान कहां पर है? पापुआ न्यू गिनी. कहां पर है? यस, जिसको आप कहते हो कौन सा? अपना वेस्टर्न पैसिफिक. तो ये पापुआ न्यू गिनी का इलाका था. और वो पहला आदमी था जो वहां जाके काम कर रहा है ट्रोबियान आइलैंड्स पर. ये पापुआ न्यू गिनी के लोग जिससे अभी वो मिला था. डेंजर है. मार्केट मीट कहां जाएगी फिर? भाई साहब, ट्रोबियन आइलैंड पे जा रहे हो आप, वहां पे पार्टिसिपेट. और उसने वो सारी चीजें की जो बॉस ने की थी. लोकल लैंग्वेज, नेटिव, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, अनबायस्डनेस, कल्चर यूनिक, ये सारी चीजें वो वहां जाके कर रहा है. राइट. वहां की लैंग्वेज सीखना. तो ये पहला बंदा था जिसने नेटिव लैंग्वेज में अपना पूरा सिस्टम दिया. दिस वाज मेलिनोस्की, ऑर्गेनाइजर ऑफ वेस्टर्न फील्ड पैसिफिक. राइट. ट्रोबियन. और इसी आधार पर उसने कुला, साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ रिलीजन, राइट, फंक्शनलिज्म, ये सारी थ्योरी अप्लाई की. नेटिव लैंग्वेज सीखी थी ना उसने. भाई इसी ने तो कहा था कि लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो द मीनिंग ऑफ ए कल्चर. कॉग्निटिव अप्रोच क्या कहती है? लैंग्वेज, सिंबल्स, नोइंग द सिंबल्स ऑफ मीनिंग द सिंबल्स. लैंग्वेज भी तो सिंबल्स थी. तो ये मेलिनोस्की आता है. उसके बाद तो होड़ लगी है. निकालिए कौन कौन आएंगे? मार्गरेट मीड कहां गई थी? रूथ पंडित कहां गई थी? गई थी. अब कंटेंट एनालिसिस मेथड की बात कर रहे हैं. मैं मार्केट मीट की बात कर रहा हूं. मैं कोराडो बुश की बात कर रहा हूं. कोराडो बुश कहां गई है? अलोर आइलैंड गई है ना. क्लिफोर्ड गिज की बात करूं, विक्टर टर्नर की बात करूं, कर रहा है, सब कर रहे हैं, फील्ड वर्क कर रहे हैं ना. करो. अब आप जिनने काम किया. और इंडिया में कौन कर रहा है? एस सी रॉय, बिहार हो, खरिया मुंडा, दुबे जी हैदराबाद, ऐसी दुबे हैदराबाद में. राइट. काम शुरू हुआ, फील्ड वर्क ट्रेडिशन हो रहा. बस ये लाइन लगा दो, हो गया तुम्हारा फील्ड वर्क ट्रेडिशन.
तो उसमें शर्तें क्या होनी चाहिए? अनबायस्ड होना चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, नॉन इंटरफेरेंस, ट्रेडिशंस। ये हो गया फील्ड वर्क ट्रेडिशंस। आप करेंगे 3 बात, टेक्निक, मेथड एंड मेथडोलॉजी। टेक्निक टूल्स कर दिए, मेथड में 5 मेथड होंगे, जैसे मैंने बताया साइंटिफिक, हिस्टोरिकल, जीनियोलॉजिकल, ऑब्जर्वेशन, क्रॉस कल्चर। क्रॉस कल्चर का एग्जांपल कौन है? मर्डॉक, 250 सोसाइटीज, देन क्रॉस कल्चर हो गया। जीनियोलॉजिकल मेथड रिवर्स, किसी भी ट्राइब का पूरा पिक्चर बनाओ, फादर कौन मदर कौन, जो हमने पढ़े थे, ये जीनियोलॉजिकल मेथड है। वंशावली, राइट, इन दोनों ने शादी की, ये बच्चा हुआ, ये पोता, ये दादी, तो उससे किनशिप जाना, मेरी जाना, फैमिली जानी, ये होता है जीनियोलॉजिकल मेथड। जीनियोलॉजिकल मेथड हुआ। हिस्टोरिकल मेथड क्या है? डेटा कलेक्शन, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, कौन लेकर आ रहा है? बस नो द डेटा, नो द हिस्ट्री। हिस्टोरिकल मेथड कलेक्शन ऑफ डेटा, आर्काइव्स लेकर। हिस्टोरिकल मेथड। साइंटिफिक मेथड पॉजिटिविज्म, ऑब्जेक्टिविटी, है ना, सारा वही है। साइंटिफिक मेथड है एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन। पॉजिटिविज्म जिसको कौन अपना रहा है? मैक्स वेबर से कौन जाता था? गिट्स। मतलब क्या होता है? साइंटिफिक मेथड, यूजिंग साइंटिफिक मेथड, राइट। एंथ्रोपोलॉजी साइंस, साइंटिफिक मेथड, हिस्टोरिकल मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वर। 2 तरह का ऑब्जर्वेशन होता है, डायरेक्ट और क्लियर। इनडायरेक्ट में आप सेकेंडरी डेटा लो, डायरेक्ट में प्राइमरी डेटा लो, खड़े हो वहां पे, राइट। अब डायरेक्ट भी 2 तरह का हो सकता है, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल में आप पहले से आपको पता है ये चीजें करनी, ये चीजें। अनकंट्रोल में आप गए अंदर, जो होगा देखा जाएगा, जैसा होगा वैसा देख लूंगा। अनकंट्रोल 2 तरह का हो सकता है, पार्टिसिपेटरी एंड यस। ये ऑब्जर्वेशन है। अब आगे पढ़ेंगे पार्टिसिपेटरी का। आप वहां जाके बस आप पार्ट नहीं बन रहे भाई, वहां पे नाच गाना हो रहा है, आप बैठे हैं देखते हैं, ठीक है बढ़िया, मैं देख रहा हूं, सिर्फ नोट कर रहा हूं। एक मैं भी डांस कर रहा हूं, आई एम टेकिंग द पार्ट, राइट। शादी में होता है ना, कुछ लोग डांस करते हैं, कुछ पैसे चुगने के लिए होते हैं। अब शादी में कोई नागिन डांस करने वाले भी होते हैं, कपड़े फाड़ लेते हैं बड़े, वो होता है डीप, होता है थिक डिस्क्रिप्शन। नागिन डांस इज ए थिक डिस्क्रिप्शन। वो लोग एक्सट्रीम रिलेटिविस्ट है भाई, वो बाद में लिखता है कि भाई ये कल्चर है। देखो 2 तरीके हैं, या तो खुद देख लो या लोगों को देख लो, 2 तरीके। सो पार्टिसिपेटरी खुद देख लो, नॉन पार्टिसिपेटरी लोगों को देख लो। तो ये हुआ हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। एक होता है क्रॉस कल्चर स्टडी, हम बात कर चुके हैं, राइट, एक एथनोग्राफी। तो ये हो गए मेथड। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तो उसमें क्या पढ़ेंगे? शेड्यूल, क्वेश्चनरी, सर्वे, राइट, और इंटरव्यूज। और फाइनल आ जाएगा डेटा प्रेजेंटेशन। डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है, तरीके क्या क्या है, बहुत रैंडम असेसमेंट है, लॉन्ग टर्म असेसमेंट है, वो पढ़ेंगे। तो ये अपना पूरा चैप्टर खत्म।